करें सर स्टार्ट जी? सर 1 मिनट में सर, बच्चे इंटरव्यू। ठीक है सर, ठीक है। एक्चुअली सर पेरेंट्स कहीं के ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो उनके नेम्स आ रहे हैं, तो बस मेरे को टेक्स्ट कर रहे हैं कि किसके पेरेंट्स हैं। 1 मिनट लगेगा हार्डली। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। बस सर तजिंदर का भी शायद रिक्वेस्ट आएगा, आप देख लेना एक बारी। क्या सर? तजिंदर जो लास्ट से राइट राइट सर, राइट सर। आया है। हेलो।
So guys, we'll be starting in a while. Sir is still letting the participants enter. We'll be starting in a while. Thank you. Good morning, good afternoon, everybody. So this career options workshop is specially conducted for class 11th and 12th by AptiGuide, a very well-renowned center of the city. Anshul sir and his team, especially here to tell you about all the options you will have with commerce with math stream. And there are, Anshul sir, there are some students of non-medical also there in the group. So they were also curious to attend this workshop. So kindly, if you have time or something like that, you can clarify their Definitely, ma'am. doubts also. Right. So everyone kindly listen to them very carefully. Whatever query you have, right? Raise your hand and then ask.
Don't interrupt in between. They will give you time to ask your questions, your queries, whatever you want to ask about, whatever you want to clear about your options. So kindly maintain the decorum in the class also. That is most important thing. This is actually for you people only. So is I'm audible? There's little connection error. You're audible, ma'am. I can hear you properly. So this is actually majorly meant for you people only. So whatever doubts you have, kindly clarify right now, because now you people have good time to sit back at home. There's no pressure from the schools also. So you have enough time to prepare. I always tell you in the class also कि competitives are also most important part. What commerce people think is कॉमर्स वाले बच्चों की स्पेशल थॉट क्या होती है, यार हमने क्या करना है कॉम्पिटिटिव देकर, बट दिस इज नॉट ट्रू. आज के टाइम पे वो वाला जमाना चला गया दैट you have to be doctors or engineers. You have lot many options to explore, and especially a student of a commerce with maths. Why I'm emphasizing on maths? Not because I'm a mathematics teacher, because most of the people like they feel like yaar bada boj hai maths, but Anshul sir will let you know that maths is such an important subject for the competitive that you have to do it, right? You have to do it. So kindly, Anshul sir, now you take your time and start. Thank you. Okay, good morning, everyone. I'm glad to see you all here on this Sunday afternoon, because it's difficult on Sundays, right? But anyhow, you all are here. That shows your seriousness towards your commitment towards your career and your how obedient you are. I mean, sir asked you and you attended the session. That's really great to see. Now, the session that we're going to have is about the careers after class 12th. I had in mind that most of the students would be commerce students, but since sir told me that there are some non-medical students also, so I would be talking about those options also. But in case if you have any doubts, you feel that your queries are not being answered, or you're something that you're not, I mean something that you're looking for is not there, you can let me know. ठीक है, आप मेरे को बता सकते हो. अगर आप कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज हैं आपकी, तो आप मेरे को पूछ सकते हो. वैसे जस्ट टू शेयर, या जस्ट सबको पता ही है कि नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स का एक स्टैंडर्ड नेशनल टेस्ट उन्होंने देना ही है. वो कौन सा स्टैंडर्ड नेशनल टेस्ट है? जेईई. हर किसी को देना ही होता है ना, हर कोई देता ही है. बट सो इसलिए मैं जेईई के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा. ओके, कंसिडरिंग कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टेक दैट एग्जाम, आई विल टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस दैट आर देयर. ओके, so before I start, let me just share my brief profile. Just a second. I hope all of you can see my screen. If somebody can just write on a yes or maybe speak something, I'll get to know that you're seeing my screen. Yes, sir. Okay, right. Yes, sir. Thank you so much. We can see you. Thank you so much. Okay, so just a brief about my profile. You might have received it already from sir. Okay, so I have completed my management education from IIT Delhi. I completed MA Psychology from IGNOU, and I have been taking the CAT examination for the past 7 years consistently, and I've scored 99 percentile and cleared SBI exam. Right. So I'm aware of all these exams that students take after their class 12 or after their graduation. Right. So I've conducted a number of career awareness in across the entire Punjab, in schools in Jalandhar, in Chandigarh, in Ludhiana, right? Okay, so moving on, and just to share with all of you, we actually deal with the preparation of some of the examinations, which you can see here on the screen, for school students. In the section where it's written school students, these are the exams that we otherwise take care of, right? We prepare students for these examinations, these ones. Okay, SAT, ACT, CLAT, BBA, hotel management, mass comm, TSCs, Olympiads, design management, right?
And just to share, I thought sir would also not be aware of all of these right now, तो मैं sir को भी एक बारी share कर दूं. Some of your students, I've not shared all of them. Anushka from DPS, Chahat from DPS, Shagun from Cambridge, Govind Khosla from DPS, Tuti Jaggi from APJ, Hagam from DPS. They've cleared the exams whose results were announced as of now. So a lot of students of sir have also cleared NPAD exam whose result was announced yesterday. So they've got selected into Narsi Monji, right? And sharing the details of these students who have got their admissions outside India now. So Akarsh from DPS, he's got admission in Warwick Business School, which is ranked 62nd in the world. Prabnoor Singh from MGN Adarsh Nagar, he's been selected in University of Toronto, which is the #1 university in Canada and number 18th university in the world. He's been selected into Rotman School of Management, which is considered the topmost management school across the world, not only in Canada, but across the world. And Venya Chavda from APJ, she's been selected in a lot of universities. She's been selected in, I have not mentioned all of them. I've mentioned just some of them. She's been selected in University of Victoria and University of Windsor for criminology, Ryerson University, Simon Fraser University. See, these are the rare career options that we come across. जो आप सुनते हो criminology, आप बहुत कम लोग सुनते हो कि criminology में लोग जा रहे हैं, right? So, but people are aware now and they take up these options also. So, moving on. The highest scholarship that one of our students has received this year is a scholarship of $72,000 from Baylor University in USA, because USA is very generous when it comes to giving scholarships. If you are aware, US में आपका 100% तक का scholarship हो सकता है, provided you satisfy all the criteria that they have, which I'll be talking about, right? तो इस साल हमारे students ने almost 1.5 crore तक के scholarship achieve किए, right? We have 50 plus selections in Christ, Symbiosis and Narsi, जिनके result अभी आए हैं, बाकी और results अभी आने हैं, right? और exam अभी होने हैं, results आने हैं, right? In the last 2 years, we've got 100 plus selections in universities like Narsi, Monji, Symbiosis, Christ, Flame, IAM, DU. And we have a highest all India rank of 19 in CLAT examination, right? Now, moving ahead, the options that I had kept for today's session were these. But let me tell you, it's a 130 slide presentation. Obviously, I will not be able to cover all of those in the time that we have. So I'll be skipping some of those. But यहाँ पे ये वाले options जो मैंने लिखे हैं, these options are there, right? But हो सकता है हम सारे ना cover कर पाएं. तो आपके जो भी queries होंगे in between आप मेरे से पूछते रहना, ठीक है? ताकि मैं उनको specifically address करूं, right? So the first option that I'm going to talk about is management. Now, commerce students, especially, ma'am ने अभी आपसे बात करी थी, बहुत important, ma'am had told you that commerce with maths is a very good combination. Why? Because a lot of institutions of management in India, they have this criteria that a student should have maths in their class 12. For example, if you want to get into Delhi University has, आपको पता होगा दो criteria हैं. One is class 12 का percentage. और वो आपको पता है, it could be very uncertain. Even a difference of 1% could make a big difference, right? एक 1% का difference भी बहुत बड़ा difference बना सकता है. कहाँ आप expect कर रहे थे कि मेरे 98% आएंगे, आपके 96% आ गए, वो एकदम से college पूरा drop हो गया, right? कि जो college आपको मिलने वाला था शायद वो नहीं मिलेगा, right? और ऐसे ही there had been people, बहुत अच्छे students हैं, बहुत अच्छे marks लेते हैं. सर के results I've seen 97%, 98%. They are definitely going to get into Delhi University, right? But that 1% can make a difference. 95% आ जाएंगे तो maybe आपको Delhi University के top notch colleges BCom के लिए शायद ना मिल पाए. So what is our backup in that case? अच्छा, Delhi University में भी it's very important. If you want to get into BCom honors, you should have maths in class 12. That's very important, right? And but DU के अंदर बहुत सारे ऐसे programs हैं जिनके लिए आपको percentage matter नहीं करता है. What matters is an exam, JAT. It's called JAT. DU JAT. So it's a joint admission test conducted for some programs. I'll be talking about them in detail, but थोड़ा आपको brief दे रहा हूँ. BMS program, Bachelor of Management Studies, BBE program, okay, and BFIA program. ये 3 program Delhi University के बहुत अच्छे programs हैं. And let me tell you, percentage का requirement इनके लिए primary requirement नहीं है. What is the primary requirement for these? There's an exam called JAT. JAT is very competitive, but if a student is sound in mathematics, he can clear the JAT examination, right? तो इसके papers and all वो आप मेरे से कभी भी discuss करके paper ले सकते हो कि JAT का paper कैसा होता है, आप देखना चाहते हो, you can see,
right? But there's a requirement, you should definitely have maths in your class 12th. Maths आपके पास definitely होना चाहिए. So considering not only for commerce students, it's a very good option for non-medical students also, because non-medical students अगर engineering को छोड़ दे तो उनके पास option बचते क्या हैं? Management is this, I would say management is the second best option that they can get, right? Now I'll back it up with the examples on and some important facts. आपको पता हो IIT में जाने का पर्पस क्या होता है लोगों का? IIT में किसी भी IIT में जाना है, what is the purpose? पर्पस की वहाँ सैलरीज बहुत अच्छी मिलती हैं, एजुकेशन तो अच्छी है, द एजुकेशन इज द टॉप नॉच. इंडिया में जितनी अच्छी एजुकेशन IITs में है उतनी अच्छी किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं है, और उसका उनको रिजल्ट भी मिलता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस. सैलरीज बहुत अच्छी हैं, राइट? बट उस तरह की सैलरीज अभी IITs में आप बात करो, द एवरेज सैलरी इन IIT मुंबई is about 8 lakhs per annum. After a 4-year BTech degree, its salary is about 8 lakhs per annum. IIT Mumbai is considered the top-notch IIT. अब आप सुनते हो न्यूज़ में कि 1 करोड़ का पैकेज है, 1.5 करोड़ का पैकेज है, 80 lakhs का पैकेज है. वो पैकेज हर किसी का नहीं होता है, उससे हम लोग मिसलीड ना हो, क्योंकि उसमें that package is for maybe 1 student, maybe 2 students, and that too is not an Indian package, right? Somebody who gets selected in states, USA में कोई सेलेक्ट हुआ है तो USA में उसको ऑब्वियसली डॉलर्स में सैलरी मिल रही है, तो एंड ऑब्वियसली वो करोड़ में जा सकती है, इजीली जा सकती है. इंडिया में यू डोंट गेट सैलरीज लाइक दैट, राइट? तो IITs में 1-2-3 स्टूडेंट ही होते हैं जो बहुत अच्छे सैलरी लेते हैं. हाँ, देयर आर स्टूडेंट्स व्हिच कमांड सैलरीज लाइक 20 lakhs per annum, 15 lakhs per annum, ठीक है, बट द एवरेज इज अराउंड 8 lakhs per annum फॉर IIT बॉम्बे. तो बाकियों का इसके आसपास है, इससे थोड़ा सा नीचे होगा, जैसे IIT दिल्ली है इज अराउंड 7.9 lakhs, which is almost close to 8 lakhs per annum. तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रीजन होता है स्टूडेंट्स का IIT ज्वाइन करने का, जो लोग नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं. बट लेट मी टेल यू, आपके पास मैनेजमेंट के अंदर भी सिमिलर ऑप्शन है. द ऑप्शन इज कॉल्ड IIM इंदौर. तो IIM इंदौर इज द ओनली वाज द ओनली IIM टिल लास्ट ईयर जो एक 5-year प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफर करता है. इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट 5 year. तो 5 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मतलब क्या है कि आप 5 साल पूरे करने के बाद एक बार पोस्ट ग्रेजुएट होके ही निकलोगे. यू डोंट हैव टू गो फॉर अनदर पोस्ट ग्रेजुएशन, वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन ही कंप्लीट होगी. एंड IIMs का लास्ट ईयर एक लॉ पास हुआ था, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने एक लॉ पास किया था दैट IIMs आर ऑटोनॉमस बॉडीज और वो डिग्री दे सकते हैं, राइट? वो डिग्री दे सकते हैं. और IIMs आपको अब MBA की डिग्री देते हैं आफ्टर पासिंग आउट ऑफ 5 years का कोर्स करने के बाद MBA की डिग्री आपको मिलती है, राइट? और द एवरेज पैकेज इफ आई टॉक अबाउट फॉर 2020 का, तो चलो अभी कोरोना वायरस ने का इतना इम्पैक्ट है कि सब कुछ डिले हो गया, बट 2019 की मैं बात करूं तो IIM इंदौर की एवरेज सैलरी वाज 17 lakhs per annum. यू सी, ऑलमोस्ट डबल ऑफ द सैलरी ऑफ IIT बॉम्बे जो आपको 4-year BTech के बाद मिल रही है, उससे डबल सैलरी यहाँ पे मिल रही है IIM इंदौर में, राइट? पर जितना कंपटीशन IIT में घुसने के लिए है उतना कंपटीशन IIM इंदौर में घुसने के लिए भी है, राइट? जो नंबर ऑफ सीट्स इन IIM इंदौर आर 120 ओनली. लेकिन एक अच्छी चीज मैं आपको जो बताऊं, IIT में अगर सारे IITs में हम मिला लें तो 10,000 सीट्स हैं अप्रोक्सीमेटली, राइट? एंड 10,000 सीट्स के लिए कैंडिडेट कितना अपियर हो रहा है? मोर देन 10 lakh, अप्रोक्सीमेटली 13.5 lakh कैंडिडेट अपियर्ड लास्ट ईयर. 13.5 लाख कैंडिडेट अपियर हुए थे, जिसमें से 10,000 सीट्स थी. लेकिन यहाँ 120 सीट्स के लिए कैंडिडेट कितना अपियर हो रहा है? लास्ट ईयर का डेटा इज अबाउट 24,000 स्टूडेंट्स. ओके, 24,000 स्टूडेंट्स जो है वो अपियर हो रहे हैं. तो आइडियली आप देखो तो 2% का सक्सेस रेट है यहाँ पे, बट IITs में 2% का सक्सेस रेट भी पूरा नहीं है, राइट? सो इट्स लेसर देन दैट. तो इसमें आपका सक्सेस रेट होने के चांसेस हैं, राइट? एंड एग्जामिनेशन, ऑल्दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दे डू नॉट से एक्सप्लिसिटली कि मैथ्स होना चाहिए, बट लेट मी टेल यू, इन द एग्जामिनेशन जो आप IPM का एग्जामिनेशन देते हो 5 year के लिए, इट्स कॉल्ड IP मैट. जो IP मैट का एग्जामिनेशन आप दे रहे हो उसमें मैथ्स आता है, सिर्फ 6 to 10th का मैथ्स नहीं आता, 11-12th का मैथ्स आता है. द टॉपिक्स दैट यू आर स्टडिंग, अभी आप पढ़ रहे होगे लिमिट्स, कंटिन्यूटी, राइट, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन पढ़ रहे होगे, कैलकुलस, बेसिकली कैलकुलस पढ़ रहे हो, वेक्टर्स पढ़ रहे हो, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हो. ये सारी चीजें IP मैट के अंदर पूछते हैं, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर योर मैथ्स प्रॉपरली. ओके, मैथ्स इज very much required in these examinations, right? And if I talk about
the highest package that somebody has got, it's 89 lakh per annum. And let me be very honest with you, 89 lakhs per annum was a abroad package. ये India का package नहीं है. The student got placed outside India, but India के अंदर भी इनका highest package 40 lakhs का है, which is very good, which is very, very good in considering Indian standards. 40 lakhs per annum is very good, and that too after completing 5 years of education, right? तो और इनका average 17 lakhs का है. That shows कि बहुत सारे बच्चे 17 से ऊपर भी हैं, right? And अगर मैं lowest की भी बात करूं, the lowest also goes till around 7-8 lakhs per annum. तो जो average है IITs में वो almost यहाँ पे lowest जाता है, right? IIM इंदौर के अंदर, right? और एक बहुत बड़ा advantage ये है कि आपको दोबारा ग्रेजुएशन के बाद कैट का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा एक IIM में घुसने के लिए, बिकॉज आप ऑलरेडी जा चुके हो उसके अंदर, राइट? एंड एक क्वेश्चन जिन लोगों को IIM इंदौर के बारे में पता है, तो मेरे से वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इफ वी वांट टू ड्रॉप आफ्टर 3 years. 3 years की बैचलर्स होती है हमारी, कोई भी और बैचलर्स हम करते हैं तो वो 3 years की होती है, कोई बीकॉम करते हैं, BBA करते हैं, वो 3 years की होती है. इन दिस सिनेरियो 3 साल के बाद क्या होगा अगर मैं प्लान ड्रॉप करता हूँ कि मेरे को बाहर जाना है पढ़ने, या मेरे को इंडिया में ही किसी और IIM अहमदाबाद में पहुंचना है, या कहीं कैट देके जाना है, तो आपको अलाउड है 3 years के बाद छोड़ना. You can drop out of IIM Indore after 3 years. They give you a bachelor's degree, which is called a BA degree. Okay, BA Liberal Arts degree, right? Because program ये basically it's not a BBA program. ये आपको BBA वाले subjects तो सारे पढ़ाते हैं, साथ में और बहुत सारी चीजें, psychology, sociology, dance, drama, music, ये सारी चीजें का combination है IIM Indore के अंदर. Because they want to develop a holistic personality for a student, right? So this, as of now, is a very good option for commerce students who have mathematics and the other students, non-medical students also. In fact, just to tell you, I have non-medical students who are preparing for IIM Indore's exam as a substitute to their JEE. So in case they are not able to clear JEE, or maybe they don't pick up JEE as their primary option, they are keeping this as an option as well, right? And second, बाकी के facts भी बता रहा हूँ. ये बाकी सारी देखो, ये 5-year degree है, ये बाकी सारी 3-year degree हैं, और 3-year degree के बाद look at the packages. ये है शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत टॉप नॉच कॉलेज है फॉर BBA, एंड दे ऑफर 7.2 lakhs का एवरेज, राइट? 7.2 lakhs का एवरेज पैकेज आफ्टर अ 3-year degree. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट 5-year degree. आफ्टर अ 3-year degree you get a package of this, right? Narsi Monji in Mumbai, after a 3-year degree you get a package of 5.9 lakhs per annum. This is an average package. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एवरेज है तो इससे ऊपर नहीं है. 20 lakhs per annum Narsi Monji के अंदर last year one of my old student had got the package of 20 lakhs per annum through Narsi Monji after a 3-year degree in bachelor's, 3-year bachelor degree, right? Then next is Symbiosis, almost close. Symbiosis का SCMS, right? So 5.85 lakhs per annum is the average package there. And then Christ University, all of you must be aware of, it's 4.9 lakhs per annum. This is the package, okay? क्योंकि अल्टीमेटली आप जो एजुकेशन ले रहे हो दैट इज फॉर योर डेवलपमेंट एज वेल एज टू मेक यू सेटल डाउन इन दी वर्ल्ड लेटर ऑन. आपको लेटर ऑन जाके यू हैव टू अर्न बाय वन वे और द अदर, राइट? तो आपको उस चीज के लिए काम करना है, तो ऐसा कोर्स डेफिनेटली लेना चाहिए जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे सूटेबल ऑप्शंस मिल रहे हैं. एंड दीज आर in fact students who expect that they would get more than 97%, 96%, 98%, they should also keep this as an option. Why? Because वो 0.5% का गैप आपका पूरा कॉलेज हिला सकता है कि आपको जो ग्रेजुएशन में कॉलेज मिलने वाला था शायद वो एकदम से चेंज हो जाए, है ना? तो सब लोग जो 12th कर रहे हैं कॉमर्स में, एक ड्रीम तो होता है कि हम SRCC में जाएं, बट SRCC भी कितने लोगों को अकोमोडेट करेगा, राइट? परसेंटेज मैटर्स अ लॉट, राइट? तो अब लेट मी टेल यू, जो जलंधर में इस टाइम पे टॉपर है, द गर्ल विद 99%, जिसका आपने शायद इंटरव्यू देखा होगा इन द न्यूज़पेपर, अभया अरोड़ा फ्रॉम MGN. शी इज आल्सो माय स्टूडेंट. शी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर DU JAT एग्जामिनेशन. ये शहीद सुखदेव सिंह के लिए वो भी प्रिपेयर कर रही है. ऑल्दो शी हैज 99%, SRCC उसको हंस के मिलेगा, लेकिन शी इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस बिकॉज शी हैज केप्ट इट एज अ प्राइमरी ऑप्शन. एंड द रीजन बीइंग, जो आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज BMS, BFIA, BBE प्रोग्राम्स के बाद मिलती हैं, वो इमीडिएट BCom के बाद नहीं मिलती हैं, राइट? एंड दीज आर द एम्प्लॉयर्स हु गो टू दिस कॉलेज. टाटा, KPMG, कॉग्निजेंट, वोडाफोन, ICICI, हिंदुजा ग्रुप, पेप्सिको, अर्नस्ट एंड यंग, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इनको कैंपसेस को विजिट करती हैं, राइट? अभी आगे मेरी स्लाइड में जैसे IIM इंदौर के बारे में आपको मैंने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बताई हैं, राइट? सो होता क्या है IIM इंदौर में, इट वाज द ओनली IIM टिल लास्ट ईयर, बट मैं इंदौर के साथ एक और IPM ऐड कर देता हूँ, रोहतक.
तो लास्ट ईयर रोहतक हैज आल्सो स्टार्टेड अ 5-year प्रोग्राम, इट्स कॉल्ड IPM। रोहतक भी अपना अलग एग्जाम लेता है। एंड लेट मी टेल यू, कई लोगों को ना रोहतक सुन के दिमाग में आता है कि शायद रोहतक के बारे में हमने बहुत अच्छा नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना है? क्योंकि पीछे जाट आंदोलन हुआ था तो बहुत तोड़फोड़ हुई थी एंड सब कुछ। तो लेकिन that was a one time event. IIM Rohtak is a very good institution, right? अभी उन्होंने नया बैच स्टार्ट किया है लास्ट ईयर से, लेकिन the students who are in IIM Rohtak, they are very happy, right? And they expect good placements. Otherwise, let me share it with you. IIM Rohtak के जो otherwise MBA के students होते हैं, जो MBA तो वहाँ पे काफी देर से चल रहा है ना, तो वहाँ पे जो 5-year अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है, लेकिन 2-year MBA वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज पैकेजेस हैड बीन अबाउट 13 lakhs per annum, right? तो ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट कि इनका जो IPM होगा उसका भी सैलरी, अभी IPM कंप्लीट होने में 4 साल और लगेंगे, तो यू आर गोइंग टू गेट सैलरीज लाइक दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? मे बी 15-17 lakhs per annum easily मिलेगा, राइट? सो IIM इंदौर, IIM रोहतक, दीज आर द 2 IIMs दैट ऑफर दिस। तो IIM इंदौर की अगर मैं बात करूं, देयर इज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर दैट, देयर आर ओनली 120 सीट्स एज आई टोल्ड यू अबाउट। सी एलिजिबिलिटी देखो, इट्स ओनली 60%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका सपोज परसेंटेज 92, 93 आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते तो ये ऑप्शन है। एंड आई एम श्योर जो बच्चा 92, 93, 94, 95 ले रहा है, वो ही इज ऑलमोस्ट एज गुड एज अ स्टूडेंट हु गेट्स 98। बस थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है एक आधे एग्जाम के अंदर जिसपे आपके मार्क्स गिर जाते हैं, राइट? लेकिन आई एम श्योर दैट दीज स्टूडेंट्स कैन डेफिनेटली क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IPM और DU JAT, राइट? अभी IPM में होता क्या है, देयर आर ओनली 2 सब्जेक्ट्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड वर्बल एबिलिटी, 60 क्वेश्चंस इन मैथ्स एंड 40 क्वेश्चंस इन इंग्लिश। ये 60 को डिवाइड किया होता है इन्होंने 40 और 20 में, जिसमें 40 MCQs होते हैं। आई होप you understand what MCQs are, multiple choice questions, and 20 questions are short answer type questions. So short answer का मतलब है आपको सिर्फ आंसर देना है और लिखना है आंसर। You need to type in, अभी ऑनलाइन हो गया ये, तो type in the answer, आपको type in करना है, right? And they do not only look at the aptitude test, they also look at some other things like written ability test. Written ability test क्या होता है? essay writing. एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको essay writing भी करवाते हैं, and then personal interview. और वेटेज बताऊं आपको तो 35% वेटेज is for personal interview, 50% वेटेज is for the exam, and 15% वेटेज is for the essay. ठीक है? तो ये सारी वेटेज है, मतलब they are looking at people who are holistically developed. तो ऐसा नहीं है, देखो जो बच्चे शांत रहते हैं, शाय रहते हैं, राइट, इंट्रोवर्ट हैं, ज्यादा बोलते नहीं हैं, they might be very good in aptitude test, but they need to work on their personality also. Personality is very important if you want to crack an exam like an institute like this. Personality is very important. The reason they keep interviews is just to check your personality as well, right? So ये हुआ IIM इंदौर के बारे में। ऐसे ही और ऑप्शन जो मैं आपको DU बता रहा था, जैसे तो DU में 3 प्रोग्राम ऑफर होते हैं। बीकॉम तो सबको पता है DU की, लेकिन ये 3 मेजर प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BFIA, BFIA आप देख रहे हो, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, एंड BBE, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मे बी इकोनॉमिक्स में करियर परस्यू करना चाहते हैं, बट दे माइट थिंक कि मेरे को बिजनेस, मेरे को BBA, कुछ लोग सोचते हैं मैं BBA जाऊँ या इकोनॉमिक्स जाऊँ। You can keep this as an option because this is a combination of both. I would say this is a combination of BBA and economics. तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये BBE, right? And as I told you, जो कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं उनके एवरेज पैकेजेस आपको मैंने दिखाए पहले, वो इन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर हैं। And let me tell you, Bachelor of Financial and Investment Analysis, it's a wonderful program for those students who are very good in accounts, है ना? तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अकाउंट्स बहुत अच्छा लगता होगा। तो अकाउंट्स बहुत अच्छा लगता है, यू चूज अ करियर वेयर यू हैव टू परस्यू अकाउंट्स, राइट? ऐसे करियर कौन कौन से हैं? BFIA है, देन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर दे हैव अ प्रोग्राम इन BBA फाइनेंस, राइट? BBA फाइनेंस उनका एक प्रोग्राम होता है। ऐसे ही नारसी मोंजी का BSc फाइनेंस होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको BCom या BBA में ही जाना है, यू कैन गेट इनटू स्पेशलाइज्ड फाइनेंस प्रोग्राम्स आल्सो, राइट, इफ यू आर वेरी गुड एट अकाउंटेंसी। अब इनका आउटकम क्या है? जो लोग अकाउंटेंसी में अच्छे हैं, लेटर ऑन बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इन लोगों को हायरिंग करते हैं, इन लोगों की हायरिंग करते हैं, ठीक है? तो आपको शायद आपने टॉप 4 कंसल्टिंग कंपनीज, बिग 4 बोलते हैं जिसको, उनका सुना होगा, जिसमें डेलॉयट आती है, KPMG आती है, तो वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है वो, राइट? तो दे हायर दीज पीपल, राइट? आई हैव 2 of my students working in KPMG,
one of my student working in Deloitte. And would you imagine their package as of now अभी सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, आगे प्लान कर रहे हैं कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मे बी इंडिया से बाहर जाएं या इंडिया के अंदर ही करें. Would you imagine their package immediately after graduation when they passed out? The package, initial package that they got was 6.5 lakhs, and आज उनको काम करते हुए 3 साल हो गए हैं, and their package is about 11 lakhs. ठीक है, और सिर्फ एक ग्रेजुएशन करिए. ग्रेजुएशन जिसको हम आजकल किसी से बात करके देखो बोलते हैं ग्रेजुएशन होता क्या है. पोस्ट ग्रेजुएशन तो करनी ही पड़ती है, मैं कह रहा हूँ करनी पड़ती है, लेकिन ग्रेजुएशन भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देती है, प्रोवाइडेड आपने अच्छी ग्रेजुएशन एक अच्छी जगह से करी है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. इवन आप बीए भी करते हो, लेकिन एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है वो, दैट वुड गो मच हायर देन डूइंग एन इंजीनियरिंग इन अ सोशो इंस्टीट्यूशन, राइट. सो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस ऑफर करते हैं ये प्रोग्राम्स, दिस इज अ लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस. अभी आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप इसको अच्छे से digest कर पाओ. You can take a screenshot if you want to, or else what I'll do, I'll share these photographs with sir and you can take it from him later on, right? तो सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज BMS के लिए शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, एंड BFIA के लिए भी शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, राइट. नंबर 1 कॉलेज जिसकी मैं पैकेजेस की बात कर रहा था. बाकी अलावा देखो DU में BCom पता नहीं कितने कॉलेजेस हैं. There are more than 40 colleges that offer BCom, लेकिन ये कोर्स बहुत कम कॉलेज ऑफर करते हैं. देखो 8 कॉलेज हैं, सिर्फ 8 कॉलेज हैं, राइट. इधर BFIA सिर्फ 2 कॉलेज ऑफर करते हैं जिसमें एक विमेन कॉलेज है. तो ये तो बोनस है ना, BFIA में घुसना तो बोनस है, राइट. जब ऑफर ही नहीं करता कोई तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड ज्यादा है. और 60 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ BFIA के अंदर, और इनको 60 स्टूडेंट प्लेस करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है. सिंगल डे प्लेसमेंट है, सिंगल डे, 1 डे के अंदर प्लेसमेंट हो जाती है सारे स्टूडेंट्स, राइट, बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर लेस. एंड द थर्ड कोर्स दैट आई टोल्ड यू, इकोनॉमिक्स और बिजनेस का कॉम्बिनेशन, विच इज बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट. इट्स अ वेरी गुड कोर्स. अब देखो इसमें भी विमेन, स्पेशली विमेन कॉलेजेस हैं जिनमें ये ऑफर होता है, लेकिन कंडीशन इज इट्स नॉट ओनली द परसेंटेज, द कंडीशन इज यू नीड टू क्लियर द एग्जाम कॉल्ड DU JAT. ओके, तो DU JAT कैसा एग्जाम होता है, क्या होता है, वो मैं आपसे बात करूंगा अभी उसके बारे में, राइट. तो ये नंबर ऑफ सीट्स हैं. अगर मोटा मोटा आप टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखो, दीज आर अबाउट 1100 सीट्स अप्रोक्सीमेटली, राइट. ये सारी सीट्स अगर आप मिला लो, ठीक है ना, मोर देन 1200 सीट्स ऑलमोस्ट. तो 1200 सीट्स अप्रोक्सीमेटली हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इन 3 प्रोग्राम्स के लिए. क्वाइट अ गुड नंबर, क्वाइट गुड चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू इट प्रोवाइडेड यू क्लियर दिस टेस्ट. ओके, सो क्या होता क्या है इसके अंदर, जॉइंट एडमिशन टेस्ट एंड देन दे कंडक्ट अ पर्सनल इंटरव्यू ऑल्सो. एट टाइम्स मैंने क्यों लिखा है एट टाइम्स, उन्होंने पर्सनल इंटरव्यू नहीं भी लिया है, राइट. कई बार अनाउंस किया है कि पर्सनल इंटरव्यू नहीं लेंगे, जो इस साल बहुत चांसेस हैं. खैर आपके लिए ये साल नहीं है, आपके लिए मे बी नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर होगा, लेकिन इस साल बहुत चांसेस हैं कि वो इंटरव्यू ना लें बिकॉज ऑफ द प्रेवेलेंट सिचुएशन. तो सिर्फ एग्जाम के थ्रू ही बच्चों को प्रमोट करें, राइट. सो इसमें भी देखो परसेंटेज का 60% इज द बेसिक क्राइटेरिया. 60% से ऊपर वाला बच्चा कैन बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है. पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 60% वाला डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएगा. दे लुक एट योर परसेंटेज ऑल्सो. इंटरव्यू जब करते हो तो देखेंगे, एक उनके पास 80% वाला बच्चा है, एक उनके पास 90% वाला बच्चा है. ऑब्वियसली एक बायस आ जाएगा 90% वाले की तरफ, लेकिन अगर वो 80% वाला अपने आप को प्रूव कर पाता है इंटरव्यू में कि मैं शायद अकेडमिकली इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता हूँ, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स में बहुत एक्टिव हूँ, दे कैन सेलेक्ट दैट स्टूडेंट ऑल्सो, ठीक है. तो ऐसा मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे लिए तो 80% लाना ही बहुत बड़ी बात है, 80-85%. तो उनको भी बॉक डाउन होने की जरूरत नहीं है कि परसेंटेज ही सब कुछ है. नहीं, परसेंटेज बहुत मैटर करती है, लेकिन परसेंटेज के बिना, अगर परसेंटेज ना लाने के पीछे आपके कोई रीजन है, इट इज पॉसिबल दैट यू आर वेरी गुड एट समथिंग एल्स, तो वो आप एक्सप्रेस करो अपने इंटरव्यू के अंदर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो इंटरव्यू को प्रिपेयर करना भी बहुत जरूरी होता है, राइट. सो इफ आई टॉक अबाउट द एग्जाम, आपको एग्जाम दिख रहा है, इसके अंदर वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये 4 सेक्शंस आते हैं. और जैसा कि मैम ने बोला था, आपको दीपाली मैम ने शुरू में बताया था, मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. DU JAT का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मैथमेटिक्स एज अ कोर सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए. इंग्लिश सबके पास होता ही है, मैथमेटिक्स सबके पास नहीं होता, लेकिन मैथमेटिक्स इज अ रिक्वायर्ड थिंग फॉर DU JAT. ये देना ही पड़ता है, मैथ्स होना ही चाहिए. IIM इंदौर वाले एग्जाम में आपके पास मैथ्स नहीं होगा चलेगा, आप मैथ्स प्रिपेयर करके एग्जाम दे सकते हो, एलिजिबिलिटी में नहीं है, लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी के अंदर ही है. आपके पास अगर नहीं है ना मैथ्स, तो आप एलिजिबल ही नहीं हो देने के लिए एग्जाम, ठीक है. सो 25 क्वेश्चंस यू गेट इन ऑल ऑफ दीज एंड 100 मार्क्स के होते हैं, 400 मार्क्स का पेपर होता है, राइट. एंड लेट मी टेल यू द कट ऑफ्स दे आर रियली हाई, 320 330 मार्क्स आउट ऑफ 400 जाते हैं.
and the paper is not difficult to crack. Let me tell you, ये जितने एग्जाम मैं आपको बताने वाला हूँ सारे, उनमें सब में ये 4 ऑप्शन ही आपको दिखेंगे, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, यही सब दिखने वाला है. जीके किस तरह की आती है इनमें स्टैटिक, करंट, बिजनेस जीके. अब बिजनेस जीके की बात करूं, बिजनेस जीके ऐसी चीज होती है जो आपको लगता है शायद हमें शायद नहीं पता होगी, लेकिन बिजनेस जीके ऐसी चीज है जो आपकी डेली लाइफ में आप रेगुलरली देखते हो, लेकिन आपको शायद आप उनको नोटिस नहीं करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे डाबर है, डाबर एक कंपनी है, तो डाबर का लोगो क्या है या डाबर की टैगलाइन क्या है. अगर घर में किसी के पास डाबर का प्रोडक्ट है, आप जरूर देखना उस पर लोगो एक बनियन ट्री बना होता है. ये चलो ऐसा मेरा भी लोगो थोड़ा ट्री जैसा है, लेकिन बनियन ट्री बना होता है, और नीचे उसके लिखा होता है सेलिब्रेट लाइफ, सेलिब्रेट लाइफ, वो उसका लोगो होता है. देखो उस चीज पे क्वेश्चन बन जाएगा, राइट, उस चीज पे क्वेश्चन बन जाएगा. दैट्स हाउ द क्वेश्चंस आर इन बिजनेस अवेयरनेस, राइट. लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन. yes, tell me, who is it? Sir, actually, I had a doubt. Basically, in the IIM Indore entrance test, you said bit of ability. Does it include LR2, logical reasoning, and Yes. Yes, some portion of it includes LR. Yes, the section that I told you which had 40 questions. Out of 40, you sometimes get 8 to 10 questions from logical reasoning also. Right. Okay, sir. And sir, that in LR we have verbal or non-verbal or both. Anything can come from LR. Primarily arrangement-based question. Primarily arrangement. Okay, sir. Okay, sir. And sir, I have another doubt. We also have in DU course, Eco-Honors. Yes. In Eco-Honors, do we have placements in IB companies? See, it depends. The first preference of IB companies or the banks, investment banks that we are talking about, the first preference is generally students with the BMS degree, right? Then later on they will go on to select students from the other streams like BCom honors, right? But the first preference is generally BMS degree or a BFIA degree. Okay, sir. And sir, in BCom honors, basically the main package is from consultancy group, or do we have another options, the job opportunities, basically from consultancies? I could not hear the question. Yes. Can you repeat what you said in the beginning? I'm saying that in BCom honors, yeah. We have basically this from consultancy firms, or there are many other options apart from consultancy. A lot of options. Not only consultancies. Consultancies make a big chunk, but that's not the only option. There are accountancy firms. There are apart from financial consultancies, apart from that, there are law firms also which take from commerce background. Yes. So there are a lot of kind of opportunities that are available. Even manufacturing, they need people from commerce. So there are a lot of kind of companies that visit these colleges. Okay, sir. Thank you. And what was your name again? Sir, Purab, sir. Purab, right, Purab. Thank you so much, Purab. Okay, so let us move ahead. So I have told you about the pattern of Delhi University's entrance exam, right? And let me tell you, the quantitative ability of this exam also has topics from 11th and 12th mathematics. For example, permutation, combination, calculus, vectors, matrices, all these topics are there, right? Moving ahead, the next is Narsi Monji. Again, I was talking about students who have maths in class 11th and 12th. Narsi Monji, most of the programs that Narsi Monji offers, they have maths as a requirement. An eligibility criteria. 11th, 12th में आपके पास maths होना चाहिए to be eligible to take Narsi Monji's NPAT test. NPAT. Okay, they have a test called NPAT. अच्छा, NPAT सिर्फ maths के बिना जो course opt कर सकते हो, that is BBA advertisement. Okay, branding and advertisement. Branding and advertisement. It's a very good course, branding and advertisement, provided you actually want to get into branding industry or advertisement industry, right? But apart from that, whatever courses they have BBA, they have a BSc in finance, they have BCom honors, they have a BSc honors, a BSc economics honors, BSc economics. For all of these, maths is definitely a requirement.
Definitely a requirement, right? Now, Narsi Monji has opened 8 campuses across India. Earlier, there was a single campus in Mumbai, but they have opened 8 campuses now. The latest one is in Chandigarh, which is being started this year, right? So all of these programs, majority of these programs are offered in all these institutions, right? And apart from that, Narsi Monji also offers a course called BA in Liberal Arts. I'm not sure whether you're aware of liberal arts or not. Liberal arts is offered in very less number of institutes across India. What is liberal arts? Liberal arts एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप सब कुछ खुद सेलेक्ट करोगे. बाय खुद सेलेक्ट करना आई मीन आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं यू विल सेलेक्ट देम. फॉर एग्जांपल, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ो. आप अकाउंटेंसी पढ़ना चाहते हो, आप अकाउंटेंसी पढ़ो. आप बायोलॉजी तक पढ़ना चाहते हो, आप बायोलॉजी भी पढ़ो. ऑब्वियसली यू शुड हैव अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी. आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हो, आप साइकोलॉजी भी पढ़ो. आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ो, राइट? यू वांट टू स्टडी फिल्म एंड टेलीविजन, ड्रामा, यू कैन स्टडी एनीथिंग. यू डिजाइन योर ओन डिग्री, ठीक है, जिसको बीए इन लिबरल आर्ट्स हम लोग बोलते हैं. इट इज ऑफर्ड बाय नारसी मुंजी. एक नारसी मुंजी ऑफर करता है. इंडिया में और कुछ इंस्टीट्यूशन है जो ऑफर करते हैं. द नंबर 1 इंस्टीट्यूशन इज अशोका यूनिवर्सिटी. Why am I saying number 1? Because it's very competitive to get into. Plus, Ashoka was actually started by a group of industrialists. बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, टाटास, बिरलास, इन्फोसिस, इन सब ने मिलके अशोका स्टार्ट करने से पहले एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था फ्री में पहले. लेकिन अब अशोका यूनिवर्सिटी बन गई है जिसके अंदर ये बीए लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम ऑफर होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम अशोका, देयर इज एन इंस्टीट्यूशन बाय द नेम ऑफ फ्लेम यूनिवर्सिटी व्हिच इज इन पुणे. सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, आपको सबको पता होगा, सिम्बायोसिस के बारे में सबने सुना होता है. Symbiosis offer this post program BA Liberal Arts. Jindal Global University which is there in Sonipat. अगर कोई सोचता है कि मेरे को ज़्यादा दूर नहीं जाना है, मेरे को पास में ही रहना है, तो Jindal Global University in Sonipat, they also offer a liberal arts program. अब इसका अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि अच्छा लिबरल आर्ट्स में तो हमने सब कुछ पढ़ लिया, हम करेंगे क्या? आपके पास इतने सारे ऑप्शन खुल गए, आप समझ रहे हो? जैसे आप कॉमर्स के बाद आपके ऑप्शन कुछ रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. आप अगर कॉमर्स के बाद आपको सपोज you want to get into engineering, आप नहीं जा सकते हो, राइट? लेकिन आप इंजीनियरिंग वाले को, नॉन मेडिकल वाले को देखो, उसको सीए में आना है, उसको बीबीए में आना है, वो आ सकता है, ठीक है ना? तो ऐसे ही लिबरल आर्ट्स आपके बहुत सारे ऑप्शन खोल देता है. ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, आपके ऑप्शन बहुत सारे खोल देता है, ठीक है ना? तो लिबरल आर्ट्स वालों को अगर साइकोलॉजी अच्छी लगती है, दे कैन परस्यू अ मास्टर्स इन साइकोलॉजी, ठीक है ना? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वेन्या who also happened to be sir student, तो she got into criminology. कॉमर्स स्टूडेंट है, the commerce student got into criminology, right? कौन सोचता है criminology? लेकिन she always had her in mind कि psychology मेरे को लेना ही लेना है. तो उसे psychology based courses ये सारे opt किए. तो BA Liberal Arts is a very good program. आप इसके अंदर बहुत सारी choices हैं, लेकिन Liberal Arts में घुसने के लिए भी टेस्ट होता है. Liberal Arts में आप ऐसे नहीं जा सकते हो. Ashoka University, they have their test. Flame has their own test. Symbiosis has their own test. Narsi Monji has their own test, right? Jindal has their own test. लेकिन एक बहुत अच्छी बात, जो आपको नारसी मुंजी में लिबरल आर्ट्स में जाने के लिए टेस्ट देना है वो अलग नहीं है. इट्स द सेम टेस्ट, एक ही टेस्ट है एनपैट. वो एक ही टेस्ट देने के बाद आप सबके लिए एलिजिबल हो गए. आप बीए लिबरल आर्ट्स के लिए एलिजिबल हो गए, आप बीबीए के लिए, बीएससी फाइनेंस, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, सबके लिए एलिजिबल हो विद ओनली सिंगल एग्जाम, ठीक है? विद ओनली अ सिंगल एग्जाम. सेम इज द केस विद सिम्बायोसिस आल्सो. सिम्बायोसिस में भी आप एक ही एग्जाम दोगे और उसी एक एग्जाम से आप बीएससी इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हो, आप बीबीए के लिए एलिजिबल हो, राइट? आप बीए लिबरल आर्ट्स के लिए एलिजिबल हो. एंड बहुत रेयर ऑप्शन होता है, रेयर मतलब क्योंकि बच्चे मेरे से ज्यादा बात नहीं करते इस बारे में कि ये वाला ऑप्शन हमको लेना है, लेकिन बहुत सारे लोग एक्चुअली अंदर से इंटरेस्टेड होते हैं. अगर किसी को कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, somebody wants to become a chef, राइट? तो शेफ बनने के लिए भी तो कोर्सेज होते हैं प्रॉपर. तो सिम्बायोसिस ऑफर्स अ प्रोग्राम इन culinary आर्ट्स. culinary क्या होता है? किचन स्किल्स. तो किचन स्किल्स के ऊपर वो प्रोग्राम ऑफर करता है एक, और उसके लिए कोई आपको अलग एग्जाम नहीं देना है. आपको मसालों के नाम नहीं पता होने चाहिए, आपको वही एग्जाम देना है जो एग्जाम मैं सिम्बायोसिस का आपको बता रहा हूँ. सिम्बायोसिस का सेम एग्जाम इज फॉर बीबीए, सेम एग्जाम इज फॉर culinary आर्ट्स ऑल्सो. तो अगर कोई शेफ बनना चाहता है, किसी की हिडन डिजायर है कि मेरे को शेफ बनना है, वो एक डिस्गाइज लेके भी चल सकता है कि मैं बीबीए भी कर लेता हूँ, कि बीबीए वाला एग्जाम दे देता हूँ, बीबीए में नहीं जाना होगा, इकोनॉमिक्स में नहीं जाना होगा, तो मैं शेफ भी बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो ऑप्शन भी खुला है. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज, जब आप एग्जाम भरोगे, साथ में आपको टिक करना है कि मैं ये culinary आर्ट्स वाला प्रोग्राम भी ऑप्ट करना चाहता हूँ. तो एक सिंगल एग्जाम के थ्रू आप इतने सारे प्रोग्राम्स के अंदर जा सकते हो, राइट? सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट.
तो नारसी मुंजी की मैं बात कर रहा था, ये प्रोग्राम्स मैं आपको बता रहा था, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने लिखे हुए हैं। 50% बीकॉम ऑनर्स के लिए, 50% इन 12th, एंड बीबीए और बीएससी फाइनेंस के लिए 60% इन 12th। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा 60% ही लो, 60% वाले भी एलिजिबल हैं। तो आपका 80 आता है, 98 आता है, दैट्स वेरी गुड। एंड अ वेरी गुड थिंग इज दे डोंट टेक एनी इंटरव्यू। इंटरव्यू होता ही नहीं है इसके अंदर, नारसी मुंजी के अंदर देयर इज ओनली एन एग्जाम। तो कई बार देखो, हर बच्चे का अपना कैलिबर है, हर बच्चा अपने हिसाब से चलता है। हो सकता है किसी को लगता हो कि मैं इंटरव्यूज देने में इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं शायद अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे अभी मैंने काम नहीं किया है, या मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरे को इंटरव्यू देना बहुत दिक्कत है। तो नारसी मुंजी इज द इंस्टीट्यूट फॉर यू। आप उसको, उसका एग्जाम इतनी अच्छी तरह से प्रिपेयर करो कि उसको क्वालिफाई करके उसके अंदर चले जाओ। तो नारसी अगर इंटरव्यू लेता है तो सिर्फ एक ही प्रोग्राम के लिए लेता है। कौन सा प्रोग्राम? जो आपको मैंने पहले बताया था, बीबीए ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ उसी के लिए नारसी अपना इंटरव्यू लेता है, बाकी सबके लिए सिर्फ एग्जाम है। इसके लिए एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों है, और एग्जाम सेम ही होना है, यही वाला एग्जाम। NPAT, नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम्स आफ्टर 12th। ओके, ऑनलाइन होता है, 100 मिनट्स का एग्जाम है, यू गेट 120 क्वेश्चंस। ये इसका पैटर्न है, आपको दिख रहा है सामने। क्वांट एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे, IPM में भी यही था, DU में भी यही था, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब है, ये सारे प्रोग्राम के नंबर ऑफ सीट्स हैं, पर चलो वी कैन गेट इनटू इट इन डिटेल लेटर ऑन। तो ये टोटल क्वेश्चंस होते हैं 120, और आपको 100 मिनट्स मिलते हैं। देयर इज अ सेक्शनल टाइम लिमिट आल्सो, राइट। अच्छा एग्जाम है, इसमें मैथ्स इज अ डेफिनेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आई टोल्ड यू। तो अब एक क्वेश्चन और भी आ रहा होगा, जिन लोगों के पास मैथ्स नहीं है वो सोच रहे होंगे तो हमारे लिए क्या है? तो तुम्हारे लिए ये ऑप्शन आ गया, सिम्बायोसिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। सिम्बायोसिस डजंट आस्क फॉर मैथ्स, सिम्बायोसिस आपको मैथ्स नहीं पूछता। एक सिम्बायोसिस और एक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं जो आपको मैथ्स नहीं पूछते हैं। आपके पास मैथ्स हो ना हो, डजंट मैटर, राइट। तो आप SCMS पुणे, SCMS नोएडा, अभी SCMS हैदराबाद, SCMS नागपुर भी खुल गए, राइट। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम। बिजनेस मैनेजमेंट में अगर आप प्रोग्राम कोई देख रहे हो, इंडिया में नंबर 1 प्रोग्राम। अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इंक्लूड करें तो IIM इंदौर इज द नंबर 1 प्रोग्राम, DU सेकंड प्रोग्राम। देखो मैं रैंकिंग वाइज ही चल रहा हूँ। थर्ड प्रोग्राम वुड बी नारसी, प्राइवेट है। Symbiosis would be the 4th program, Christ would be the 5th program। ये 5 ऑप्शन बहुत अच्छे हैं if you want to get into management, right? तो अब इसके लिए भी जो एग्जाम होता है, देखो एरिया सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यू हैव इंग्लिश, यू हैव मैथ्स, यू हैव जीके, यू हैव लॉजिकल रीजनिंग। ये 4 सेक्शन ही उधर आते हैं, 4 सेक्शन ही इधर आते हैं, हर जगह। तो एक ही एग्जाम की प्रेपरेशन कैन हेल्प यू आउट विद अपियरिंग फॉर ऑल दीज एग्जामिनेशंस। एक एग्जाम नहीं, आप सब में अपियर हो सकते हो, राइट। वैसे ये एग्जाम ऑफलाइन होता है, बट अभी इस साल से इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। अभी ऑनलाइन फ्रॉम होम भी हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रिवेलेंट कंडीशंस, आप सबको पता है। तो इसमें रिटन एबिलिटी टेस्ट भी होता है, वैट, जो मैंने आपको IIM में भी बताया था, एंड देन इंटरव्यू होता है, राइट। और इनका वैट थोड़ा सा कई बार डिफरेंट होता है। ये वैट में कई बार आप क्या बोलते हैं, ये वैट की बजाय ना एक टेस्ट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं टैट। अब टैट शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन साइकोलॉजी अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको शायद पता हो। टैट इज थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। तो होता क्या है, इसके अंदर आपको एक इमेज दिखाते हैं या आपको एक वीडियो दिखाते हैं, वो वीडियो से आप क्या परसीव कर रहे हो, आपकी परसेप्शन क्या है वीडियो के बारे में, उस पर आपने ऐसे लिखना है, राइट। दैट्स व्हाई थीम के ऊपर आपको उसको एप्रीहेंड करना है, परसीव करना है, और उस पर ऐसे लिखना है, राइट। विच इज अ वेरी गुड, वेरी डिफिकल्ट थिंग इफ यू नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट। सो यू नीड टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये चीजें कहाँ होती हैं? जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी से पहले 5 डे का उनका इंटरव्यू होता है, उसके अंदर टैट होता है, लेकिन सिम्बायोसिस वाले भी टैट करते हैं बीच में, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिख रहा है 50% है, but again I'm reiterating the same thing, you target as much percentage, high percentage, 80%, 90%, because that definitely has an impact in your interviews, okay। So moving on, अब अच्छा एक चीज और, मैंने ये डेफिनेटली ये वाला इंस्टीट्यूट इंक्लूड करने का मेरा एक रीजन था। मैंने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को क्यों इंक्लूड किया इस पूरी लिस्ट में? इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी मैं प्राइमरी ऑप्शन नहीं बोलता हूँ जनरली, बट इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। कुछ लोग उनके होते हैं जिनको एक सब्जेक्ट का फोबिया होता है। कौन सा सब्जेक्ट? मैथ्स। जो चाहते ही नहीं है कि मेरे को मैथ्स फेस करना पड़े दोबारा किसी एग्जाम को देने के लिए, उनके लिए ये वाला एग्जाम है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ठीक है। और महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट इन जनकपुरी, इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन। ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको सिमिलर पैकेज देता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको देती है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे पैकेजेस आपको देती है, वैसे सूरजमल आपको पैकेजेस देता है, राइट। इट्स अ वेरी गुड BBA प्रोग्राम, ओके। सो 34 इंस्टीट्यूट्स हैं अंडर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिनका आप एग्जाम, सिंगल एग्जाम देते हो IP यूनिवर्सिटी का, ठीक है, जिसके बारे में अभी बात करूंगा। इसमें देखो ये एग्जाम है,
कोई मैथ्स नहीं है, देयर इज नो मैथ्स। इंग्लिश है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, देयर इज नो मैथ्स। ओके, अंडरस्टूड। 6250 सीट्स हैं, एक सिंगल टेस्ट होता है, ठीक है। तो जिनके पास मैथ्स, जिनको डर लगता है मैथ्स से, दे कैन प्रोबेबली ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन। ओके, सेंट जेवियर्स है, सेंट जेवियर्स अगेन रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। सेंट जेवियर्स इज इन मुंबई, इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, BMS प्रोग्राम है इनका, ठीक है। एग्जाम ऑफलाइन होता है, और देखो रिटन टेस्ट होता है 100 मार्क्स का, जिसकी 30% वेटेज है। फिर एक 100 मार्क्स का एक और स्टेज 2 में रिटन टेस्ट होता है, जिसकी 70% वेटेज है। तो दोनों एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स हैं, ठीक है। पहले वो शॉर्टलिस्ट करते हैं कुछ बच्चे, एंड देन फिर उनका आगे दोबारा एग्जाम लेते हैं। दी पैटर्न इज गोइंग टू बी सिमिलर, वही सब चीजें जो हमने पहले बात करी थी वही सब होता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। ओके, एंड ये मैं आपको एक टाइमलाइन दे रहा हूँ, एक टाइमलाइन दे रहा हूँ। देखो मैंने 2020 की टाइमलाइन जानबूझ के नहीं दी, 2019 की दे रहा हूँ, क्योंकि 2019 में नॉर्मल ईयर था और नॉर्मल डेट्स पे एग्जाम हुए थे, राइट। इस साल तो एग्जाम सारे डिले हो गए बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, लेकिन ये नॉर्मल डेट्स ये हैं यूजुअली। तो जो एग्जाम है आपको, देखो अभी मैंने लॉ के प्रोग्राम्स के बारे में बात नहीं करी है, ठीक है, लेकिन जो भी प्रोग्राम्स, जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे क्लैट का एग्जाम होता है लॉ के लिए, तो यूजुअली वो मई में होता है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक। ओके, एलेट एग्जाम होता है NLU दिल्ली के लिए, मैं इसके बारे में बात करूंगा। LSAT एग्जाम होता है। अब सारे एग्जाम देखो ये मई के अंदर ही लाई कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। एक भारतीय विद्यापीठ जून में, तो मई मतलब आप मार्च में अपने एग्जाम से फ्री होते हो, उसके बाद सिर्फ आपके पास हार्डली 1 महीना रह जाता है, ठीक है ना। इस साल तो क्लैट ने अपना एग्जाम और जल्दी रखा था, द एग्जाम वाज ऑन May 10। वो तो चलो कुछ ऐसा हो गया कि वो एग्जाम डिले हो गया है, लेकिन ये IIM की बात करें May 10 को इनका एग्जाम था लास्ट ईयर। इस साल IIM ने अपना एग्जाम April 30 रखा था, वो उनको भी डिले करना पड़ गया। बट आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, आपके मार्च एंड तक जाके एग्जाम खत्म होते हैं, और बड़ी मुश्किल से 1 महीना बचता है। और 1 महीना, डू यू थिंक इट इज सफिशिएंट? इट इज नॉट सफिशिएंट एट ऑल टू क्लियर एन एग्जाम लाइक IPM, राइट। It's not sufficient at all to clear an exam like DU-JAT. Okay, DU-JAT happens in the month of July. तो मोस्टली आप एग्जाम की डेडलाइंस देखो, सॉरी एग्जाम के डेट्स देखो, तो मई, ऑलमोस्ट मई चल रहे हैं सारे, या कुछ एक आधा जून में, ठीक है ना। एंड देन लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम जो आपको डिस्कस कर रहा था मैं, उसके अंदर फ्लेम, सिम्बायोसिस, अशोका यूनिवर्सिटी, इनके भी एग्जाम क्या होते हैं देखो, अप्रैल, मई। अशोका यूनिवर्सिटी का एग्जाम देखो, ये अप्रैल में होता है, इसका दिसंबर में भी हो जाता है, इसका नवंबर में भी हो जाता है। अशोका यूनिवर्सिटी साल में 4 बार एग्जाम कंडक्ट करती है, राइट। तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा पहले ही, ये नहीं कि आप बोर्ड देने के बाद सोचना शुरू करो कि मेरे को अब करना क्या है। अच्छा, ये चीज मैं बता रहा हूँ तो मेरे को एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट दिमाग में आ रही है जो मैं आपसे शेयर करूं। तो एक ना, काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे आप में से जो इंडिया में शायद नहीं रहना चाहेंगे, हु वुड वांट टू गो टू मे बी कनाडा, मे बी USA, मे बी UK और एनीवेयर एल्स, ठीक है। तो उनको मैं अभी क्लियर करूं कि आप लोगों को 12th खत्म होने की वेट नहीं करनी है। ये अगला महीना जो अगस्त का मंथ आ रहा है ना, इफ यू आर इन क्लास 12th, अगस्त के मंथ में एडमिशन के एप्लीकेशंस शुरू हो जाते हैं। हर साल एप्लीकेशंस शुरू हो जाते हैं। एंड इफ यू वांट दैट यू आर कंसिडर्ड एट प्रियोरिटी बाय दीज इंस्टीट्यूशंस, तो आपको शुरू में ही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एडमिशन होती है। इसमें आपका प्रोफाइल देखते हैं और आपको जो जितनी जल्दी अप्लाई करता है उसकी उतनी जल्दी एडमिशन होती है, और स्कॉलरशिप के चांसेस उतने ही बढ़ते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल। मेरे पास 2 स्टूडेंट थे जिनका मैंने एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में किया। एक स्टूडेंट मैंने आपको शुरू में दिखाया क्योंकि वो आपका सीनियर रहा है यहीं से, एंड एक मेरा स्टूडेंट उससे पहले था, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। दोनों का मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो आपको मैंने शुरू में बताया था। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो अप्लाई करने में फर्क क्या था, एक का हमने अप्लाई किया सितंबर में, एक का हमने अप्लाई किया जनवरी में। डेडलाइन थी जनवरी 15 और हमने अप्लाई किया जनवरी 14 को, ठीक है। ऑल्दो ये लगता है कि शायद कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं बनाएगा, लेकिन दिस गाय गॉट scholarship of $30,000 from University of Toronto. This guy got a scholarship of $2,000 from University of Toronto. अब फर्क देखो, $28,000 का फर्क है स्कॉलरशिप में। और ये 1 साल की स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 4 years. दिस इज अ सिंगल ईयर स्कॉलरशिप। $28,000 को आप कन्वर्ट करो कैनेडियन डॉलर्स को, दिस इज ऑलमोस्ट 14 लाख रुपीज। 14 लाख रुपए बच सकते हैं आपके, आप 5 महीने पहले अप्लाई कर लो, ठीक है ना। हमें ये पता ही नहीं होता, हम लोग सोचते हैं कि हम जब 12th कर लेंगे उसके बाद शायद हम IELTS का एग्जाम देंगे और हम चले जाएंगे, बट तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। आपको बड़े सारे लोग बताते हैं कि यूनिवर्सिटी तो बची ही नहीं, ना ये यूनिवर्सिटी बची ना वो यूनिवर्सिटी बची, आपको जो बची उसमें जाना पड़ेगा, राइट। तो आपको अगर वहां भी अप्लाई करना है, कनाडा की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज, USA या UK, दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू टेक अ स्टेप। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, IELTS का एग्जाम दो,
आइल्स का एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है। और कुछ यूएसए में जाने के लिए नॉट ओनली आइल्स, एक और एग्जाम होता है SAT। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, इफ एट ऑल दे प्लान टू गो टू यूएसए, तो उनका SAT देने का टाइम 12th में नहीं आएगा, उनका SAT देने का टाइम इस साल है। दिसंबर इज द बेस्ट टाइम टू टेक SAT फॉर यू। वाई? देखो मैंने बताया अगले साल अगस्त सितंबर में एडमिशन शुरू हो जाएंगी। जब एडमिशन शुरू हो जाएंगी, जब तुम 12th में जाओगे, तो उससे पहले तुम्हारे पास SAT का स्कोर होना चाहिए। यू शुड हैव SAT का स्कोर, यू शुड हैव IELTS का स्कोर। Excuse me, sir. यस Sir, SAT cancel नहीं हो गए थे अब अभी US जाने के लिए for 3 to 4 दोबारा years in some universities. दोबारा शुरू हो गया, कैंसिल नहीं हुआ Okay, sir. लेट मी टेल यू, कैंसिल Okay. हुआ था। इट वाज सम यूनिवर्सिटीज हैड गिवन अ रिलैक्सेशन कि इस साल जो मार्च में और मई में SAT होना था वो कैंसिल हो गया। उस कारण काफी सारे लोग अपना SAT का स्कोर दे नहीं पाए, राइट। तो उस कारण यूनिवर्सिटी ने उनको रिलैक्सेशन दिया कि आप SAT स्कोर अभी ना दो और आप अपने स्कोर्स दो 12th के, बट डोंट कंसिडर ये हर साल होने वाला है। ये इस साल स्पेशल सर्कमस्टांस है ऐसा, इसलिए ऐसा हुआ है। ये हर साल नहीं होने वाला है। SAT ने दोबारा अपनी एग्जाम डेट्स दे दी हैं। अगर आपको पता हो, जो मार्च का एग्जाम कैंसिल हुआ था वो अगस्त 29 को हो रहा है, ठीक है ना। जो मई का एग्जाम कैंसिल हुआ था वो भी सितंबर को हो रहा है, वो अगस्त में सितंबर में भी एग्जाम ले रहे हैं। अदरवाइज अक्टूबर में होता है इंडिया में एग्जाम। इंडिया में सिर्फ अक्टूबर में, दिसंबर में, मार्च में और मई में, ये 4 डेट्स होती हैं एग्जाम देने की। बट इंडिया में ये मार्च और मई इस साल कैंसिल हो गए थे। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने अगस्त और सितंबर की एक्स्ट्रा डेट्स ऑलरेडी दे दी हैं। इसका मतलब जो नेक्स्ट ईयर के एडमिशन हैं, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, वो SAT के बेसिस पे ही जाने वाली है, राइट। सो यू नीड टू बी वेरी वेल अवेयर कि SAT आपको टाइमली देना है। तो स्पेशली आई वुड से 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो SAT सोचें तो वो दिसंबर तक सोच लें। क्यों? क्योंकि दिसंबर तक दे दें। क्योंकि क्या होता है, अगस्त सितंबर में जब एडमिशन शुरू होगी, उससे पहले आपके पास अटेम्प्ट कौन सा है? एक अटेम्प्ट है आपके पास मार्च का, एक है आपके पास मई का, एक दिसंबर पिछले साल का। देखो मार्च आप दे नहीं पाओगे, रीजन बीइंग सबके एग्जाम होते हैं स्कूल में, राइट। मई का एक ही अटेम्प्ट बचता है। अगर आप मई में अटेम्प्ट दिया, मान लो आपके एक सेक्शन में अच्छा स्कोर नहीं आया, यू डोंट गेट रिक्वायर्ड स्कोर इन वन ऑफ द सेक्शंस, आपको दोबारा देना पड़ेगा। लेकिन दोबारा देने के लिए दिन कब है? दोबारा देने के लिए अटेम्प्ट कौन सा बचा? अक्टूबर में आएगा, तब तक तो एडमिशन शुरू हो चुकी होंगी। तो इसलिए आइडियली 11th को हम रिकमेंड करते हैं कि दिसंबर के अंदर ही अपना SAT दे दो, ताकि 12th के अंदर तुम पे प्रेशर ना हो। और 12th वाले, अगर 12th वाला मेरे से कोई पूछे कि मैं लेट हूं, तो मैं बोलूंगा यस, यू आर लेट ऑलरेडी। बट अगर और लेट नहीं होना चाहते हो तो ट्राई टेकिंग द एग्जाम इन अक्टूबर और मैक्सिमम दिसंबर, क्योंकि आप दिसंबर में दोगे तो आपके पास वो यूनिवर्सिटीज बचेंगी जिनकी डेडलाइंस जनवरी, फरवरी, मार्च तक रहती है, राइट। सो दिस इज ओनली फॉर USA। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट कनाडा और UK, तो यूजुअली यहाँ पे SAT रिक्वायर्ड नहीं होता है कनाडा और UK में, राइट। और इनके लिए IELTS की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर कोई SAT दे के कनाडा में अप्लाई करता है तो उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। हाँ, इनफैक्ट उसका एडवांटेज हो सकता है दैट यू कैन गेट मोर स्कॉलरशिप। दे माइट कंसिडर दैट दिस इज अ गुड कैंडिडेट, बेटर कैंडिडेट देन द अदर कैंडिडेट्स, और आपको ज्यादा स्कॉलरशिप दे सकते हैं। तो SAT अगर किसी ने दिया है या देने वाला है तो उसमें कोई हार्म नहीं है कि आप कनाडा में भी अप्लाई करो, राइट। सेम इज द केस विद UK के एप्लीकेशंस होते हैं। Yes. Sir. Yeah, sir, I have 2 questions. First one is, what are the requirements for applying for these abroad universities? And second is, what are the requirements for the scholarships for these particular universities in Canada or US? Okay. Sahib, kindly on your camera, mere bache. Switch on your camera, mere bache. Sahib. Yes, sir. Screen shared. Whose query was it? Har Sahib, right? Sahib Singh. Har Sahib, your question was कि Canada or US, what are the criteria for admission? Chalo, let me break them down. If I talk about Canada, primarily your 12th class score. बट जब आप अप्लाई करते हो तो आपके पास 12th क्लास का स्कोर नहीं होता एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस टाइम पे क्या क्राइटेरिया होता है? दे वुड लुक एट योर फर्स्ट टर्म स्कोर ऑफ क्लास 12th, ओके। अगर आप लेट अप्लाई कर रहे हो, जनवरी वगैरह में अप्लाई कर रहे हो, तो प्री बोर्ड का स्कोर, या फिर एक प्रिडिक्टेड मार्कशीट स्कूल से मिलती है, जो लेट मी टेल यू, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन लाइक UBC, अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया का सुना है, तो UBC प्रिडिक्टेड स्कोर नहीं मानती।
वो लेती ही नहीं प्रेडिक्टेड। वो क्या बोलती है, आपको प्रेडिक्टेड स्कोर नहीं सबमिट करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत घपले होते हैं हमारे यहाँ पे, स्पेशली पंजाब। तो हम लोग तो बड़े जुगाड़ू हैं इस चीज में कि हम स्कूल में जाके अपने टीचर्स को बोल के अपनी परसेंटेज बढ़वा के प्रेडिक्टेड स्कोर दे देंगे, राइट। तो वो प्रेडिक्टेड मानते ही नहीं है, दे लुक एट द प्री बोर्ड स्कोर्स, ठीक है ना। और प्री बोर्ड में आपको पता है कि आपके टीचर्स थोड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं और आपके जो एक्चुअल मार्क्स आने से थोड़े से कम आते हैं। तो आपको प्री बोर्ड में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होता है, एंड योर फर्स्ट टर्म एग्जाम्स आल्सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेकिन इनको जब हम सबमिट करते हैं स्कोर, हम 10th का स्कोर भी भेजते हैं। तो आपकी कंसिडरेशन के लिए 10th स्कोर इज वन ऑफ द क्राइटेरियाज, 12th क्लास का फर्स्ट टर्म का स्कोर इज वन ऑफ द क्राइटेरियाज। इनके बेसिस पे यू गेट अ कंडीशनल ऑफर ऑफ एडमिशन। जब आपको कंडीशनल ऑफर आ जाता है, वो कंडीशन क्या होती है कि अगर आप ये रिक्वायर्ड परसेंटेज जो उनका है वो फुलफिल करोगे तो ही आपकी फाइनल एडमिशन होगी, ठीक है। तो एंड स्कॉलरशिप के लिए भी दिस इज द क्राइटेरिया, कोई अलग क्राइटेरिया नहीं है, स्कॉलरशिप के लिए भी यही क्राइटेरिया है। लेकिन स्कॉलरशिप के लिए एक हिडन क्राइटेरिया होता है जो मैं आपको बताता हूँ, जो कोई आपको नहीं बताता। हिडन क्राइटेरिया है, जितना जल्दी अप्लाई करो उतने स्कॉलरशिप के चांसेस बेटर, ठीक है ना, क्योंकि फंडिंग होती है कॉलेज के पास। अब तुम खुद सोचो, मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे को बांटने हैं स्कॉलरशिप में, मेरे पास 5 कैंडिडेट पहले बड़े अच्छे आ गए, उनको मैंने 10-10 या 20-20 करके दे दिया, ठीक है ना, या 15-15 करके दे दिया, मेरे पास बचे ही 25 रुपए हैं। तो अगला कोई अच्छा भी आ जाएगा तो उसको क्या दूंगा मैं, पहले मैं 15 बांट चुका हूँ ऑलरेडी, मैं उसको 5 दे दूंगा, मे बी 7 दे दूंगा, समझ रहे हो ना। जितना लेट अप्लाई कर रहे हो उतने स्कॉलरशिप के चांसेस कम होते जाते हैं, राइट, दैट्स द केस। It is a hidden thing, nobody would mention it, no college would mention it, but it's a hidden thing. We've observed this with the years of experience, okay. And for USA the factors are far more. अच्छा, कनाडा में एक और फैक्टर जो तुम्हें आप बताऊं, एक एकेडमिक स्कोर, एक आपको मैंने जो बताया, एक अर्ली अप्लाई करना, एक और होता है कि अगर आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत अच्छे हैं, दे ऑल्सो प्ले अ वेरी गुड रोल। एक्स्ट्रा करिकुलर्स का मीनिंग ऐसा नहीं एक्स्ट्रा करिकुलर्स की हमने स्कूल में एक सिर्फ डेक्लामेशन डिबेट में पार्टिसिपेट किया, नहीं, थोड़े अच्छे बड़े लेवल के इवेंट, फॉर एग्जांपल आपने किसी MUN में पार्टिसिपेट किया, अच्छे MUN में पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक है, उसका आपके पास सर्टिफिकेशन है, कोई अवार्ड्स हैं, या फिर आप किसी NGO का पार्ट हो, आप NGO का पार्ट हो, किसी कोई ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है उसका पार्ट हो, ये बड़ी बड़ी अनसेड सी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अपनी ग्रीन ड्राइव्स कंडक्ट करते हैं। ग्रीन ड्राइव्स क्या है, कहीं 2-4 जगह जाके उन्होंने ट्रीज प्लांट किए हैं, उसकी फोटोग्राफ खींचते हैं, उसकी कवरेज करवाते हैं न्यूज़पेपर में, वो कवरेज भी आपके काम आती है, क्योंकि वो आपका रिज्यूमे बनता है, उसके अंदर हम कवरेज भी डालते हैं, ठीक है ना, दैट ऑल्सो मैटर्स। आपने कोई ब्लड डोनेशन कैंप किया, अभी जो मैं जिस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में हुआ है, ही यूज्ड टू वर्क विद एन NGO जो थैलेसीमिया पेशेंट्स की हेल्प करता है, ब्लड और उनको ब्लड मिलने में हेल्प करता है, मतलब वो कनेक्ट करते हैं लोगों को, ठीक है ना। तो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव दैट ही हैज टेकन। प्लस वो क्रिकेट में बहुत अच्छा है, उसका क्रिकेट के जो ट्रॉफीज हैं, क्रिकेट के जो अवार्ड्स अचीवमेंट्स हैं, वो भी हमने मेंशन किए हैं उसके प्रोफाइल के अंदर। तो दे आल्सो मेक अप फॉर अ वेरी गुड पोर्शन ऑफ गेटिंग अ स्कॉलरशिप, राइट। बात करें यूएस की, तो जितने क्राइटेरिया मैंने आपको कनाडा के लिए बताए, उनके अलावा एक एडिशनल क्राइटेरिया आप साथ लगा लो, SAT स्कोर्स, ओके, एक SAT स्कोर, ठीक है। SAT स्कोर के अलावा SAT कुछ लोग सब्जेक्ट टेस्ट भी देते हैं, ठीक है। जितने ज्यादा आप SAT दे रहे हो, आप SAT सिंगल, SAT सब्जेक्ट टेस्ट दे रहे हो, उतने आपके चांसेस बेटर होते रहते हैं, ठीक है। तो दीज आर द क्राइटेरिया फॉर गेटिंग एडमिशन एंड गेटिंग द स्कॉलरशिप, ठीक है। एंड अबाउट यूके में कोई SAT की खास ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। कनाडा स्टिल एक्सेप्ट्स SAT, यूके में ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, दे ओनली मेजरली फोकस ऑन परसेंटेज, एंड मोस्ट ऑफ द टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस इन यूके वो डेफिनेटली आस्क फॉर मैथ्स। अगर आपके पास मैथ्स नहीं होगा, आपके ऑप्शन आधे रह जाएंगे, राइट। अगर 11th-12th में मैथ्स नहीं है तो आधे ऑप्शन रह जाएंगे। अंडरस्टूड? Yeah, thank you. Okay, so about I believe for these options जो कनाडा, US, UK के ऑप्शंस हैं, मैंने आपको काफी क्लियर पिक्चर दे दिया है, राइट। क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो इसके बारे में। एंड अबाउट मैनेजमेंट जो हमने अभी पहले बात करी है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी फर्स्ट। बाकी मैं सर से और परमिशन लूंगा कि अगर हम इसको एक्सटेंड कर सकते तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, वी कैन एक्सटेंड, और एल्स अगर उसको हम लोग एक कंसाइज करके PDF में या किसी चीज में डालें तो वो भी कर सकते हैं। सर आप म्यूट हैं, आप PDF शेयर कर दीजिए, कोई इशू नहीं है सर, ठीक है, करिए सर। हाँ, परफेक्ट, ठीक है। और बाकी हर स्टूडेंट के लिए देखो, ये एक कॉमन सेशन था, बाकी हर स्टूडेंट की अपनी कुछ स्किल सेट होता है, हर किसी के अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं, हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट तुम अपनी काउंसलिंग खुद करवा सकते हो, राइट।
So we counsel students also on the basis of what your interests are, what your personalities are. There's certain things that we look at, right? और आपके लिए क्या career option suitable रहेगा? आप मेरे से कोई option पूछना चाहते हो? This is my number. I'm sharing my number. Okay. सर स्क्रीन शेयर हो नहीं रही सर, Screen share नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर। Just a second. अभी हो रही है सर? नहीं सर। मेरे को लगता है कि स्क्रीन शेयर एक सेकंड में स्टॉप करता हूँ पहले। Excuse me, sir. जी, yes. Yes, sir. Your screen was visible. हो गया सर। दिख रही है सर अब? हाँ जी सर, परफेक्ट। ये सब मैंने लिखा हुआ था, जो मैं बोल रहा था वो मैं सब लिख भी रहा था साथ में, शायद आप लिख नहीं पाए, बट एनी हाउ लेट मी जस्ट शेयर माय नंबर विद ऑल ऑफ यू। तो माय नंबर इज 9872270597। माय नेम इज अंशुल वाधवा। ठीक है, आपकी कोई क्वेरीज हो, आप मेरे से फोन पे बात करना चाहो, आप मेरे से व्हाट्सएप करना चाहो, आप कर सकते हो। एंड अगेन मैंने आपको शुरू में भी बताया था, अभी दोबारा बता रहा हूँ, वी प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर ऑल दीज एग्जामिनेशंस, एसएटी, डीबीए, क्लैट, होटल मैनेजमेंट, जो भी यू टॉक अबाउट द एग्जाम, वी प्रिपेयर यू फॉर इट, आईपीएम। एंड मैं आपको बताया था रिजल्ट्स आल्सो, द लास्ट ईयर्स रिजल्ट्स, एंड सर के अपने स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे गए हैं। नारसी मुंजी का अभी जस्ट कल रिजल्ट आया है। एज ऑफ नाउ वी ऑलरेडी गॉट 20 सिलेक्शंस इन नारसी मुंजी। एज ऑफ नाउ अभी रिजल्ट्स और ट्रैक हो रहे हैं, वी गॉट 20 सिलेक्शंस इन नारसी मुंजी। एसएटी में वन ऑफ आवर स्टूडेंट हैज स्कोर्ड, रिसेंटली स्कोर्ड 800 आउट ऑफ 800 इन मैथमेटिक्स सेक्शन। ओके, तो एसएटी के अंदर हमारा हाईएस्ट स्कोर एसएटी के अंदर जलंधर में है 1540 आउट ऑफ 1600, which is the highest for the entire Jalandhar. Okay, तो किसी का भी नहीं है। And the student who got 1540, he's got a 100% scholarship to study in City University of New York, and वो वहाँ पे criminology पढ़ रहा है। Okay, 100% scholarship. Okay, so it is very much possible to get a 100% scholarship to study in USA also, right? Canada 100% तक scholarship नहीं देता है, up to 80-90%, फिर भी वो भी देता है, right? So you can very well imagine the kind of money that is involved in this, and अगर ऐसा scholarship मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, right? 50% 70% तक का scholarship मिल जाए, that's really very good. Okay, now before I मैं आगे कुछ और बात करूं, मैं आपको PDF एक शेयर करूंगा जैसे मैंने सर से बात करी। तो तब तक आपकी कोई क्वेरीज हैं आप मेरे से अब तब तक पूछ सकते हो, क्योंकि जितना टाइम हमारे पास लिमिटेड टाइम, बट आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज इफ देयर आर एनी। So can you brief about the scope of law in India and outside India? Okay, right. अच्छा, एक there's a very important thing students ask me कि law इंडिया में करें उसके बाद बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। आप जा सकते हो, लेकिन एक स्कोप आपका लिमिट हो जाता है। Why? Because law is such a career which is different for every country. इंडिया का लॉ डिफरेंट है, यूएस का लॉ डिफरेंट है, कनाडा का लॉ डिफरेंट है, राइट? नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज का लॉ बिल्कुल अलग है हमारे वाले लॉ से। हमारा लॉ काफी सिमिलर है यूके से। इंडिया में मैं बात करूं लॉ की, देयर आर वेरी गुड ऑप्शंस। इंस्टीट्यूट्स की बात करें, आपको पता होगा ये सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, राइट? नंबर ऑफ सीट, बहुत अच्छा स्कोप है इफ यू मेक इट टू वन ऑफ द टॉप 10 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा हूँ कि बाकी में अच्छे नहीं है, लेकिन टॉप 10 में अगर आपको नेशनल यूनिवर्सिटी में किसी में एडमिशन मिलता है, दैट्स वेरी गुड। बट टॉप 10 में जाने के लिए यू नीड टू स्कोर अ रैंक ऑफ अबाउट 1300-1400 मैक्सिमम। इससे ज्यादा रैंक होगा तो आपको ये इनमें से नहीं मिलेंगे, राइट? एंड द स्कोप, there are very good companies, very good law firms in India which visit all of these colleges and take up students from them. And one more thing that I want to clear, NLUs are not the only colleges in India जो अच्छे हैं। Symbiosis का law, जिसके लिए हम SLAT का एग्जाम देते हैं, SLAT, that's very good. That's very good. आपको गुलपनाग का पता होगा, एक्ट्रेस, उसका husband is also a Symbiosis pass out for law, right? And otherwise, there are lot of other people who are Symbiosis law pass outs and very good lawyers. और अगर मैं बोलूंगा, अगर ये आपको लास्ट वाले NLUs मिल रहे हैं और Symbiosis मिल रहा है, you should definitely go for a Symbiosis rather than going for these ones. Okay? हाँ, चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी in the past few years has been very good, तो ये फिर भी कंसिडर कर सकते हो till 13th I would say,
ठीक है, बट उसके अलावा जो आपको कोई मिले तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर सिम्बायोसिस ओवर दीज, और क्राइस्ट का लॉ ओवर दीज. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज एन एग्जाम कॉल्ड LSAT, आपको शायद पता हो, जिसके थ्रू यू कैन गेट इनटू जिंदल ग्लोबल लॉ यूनिवर्सिटी. Jindal is a very good institution. If you are getting into Jindal and you are getting into any of ये टॉप 4 के अलावा किसी में भी और हो रहा है तो जिंदल वुड एनी डे बी बेटर. पर जिंदल का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक जो सबको दिखता है, जो सबको जो है भी एक्चुअली, जिंदल इज वेरी एक्सपेंसिव. जिंदल का कोर्स इज वेरी एक्सपेंसिव. द फीस, नॉर्मल फीस इज अराउंड 8 lakhs पर एनम, राइट. बाकी आपके और भी खर्चे हैं, लेकिन मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ फीस की. तो जिंदल बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसलिए यूजुअली लोग इसमें नहीं जाते, मतलब मे बी इसको कंसिडर नहीं करते एज अ प्राइमरी ऑप्शन. बट जिंदल इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जितना कॉर्पोरेट लॉ फॉर्म्स के साथ नेटवर्क जिंदल का बड़ा है, उतना 3-4 NLUs को छोड़ के और किसी का नहीं, राइट. और जिंदल की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज एन इंस्टीट्यूशन बाय द नेम ऑफ UPES, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज इन देहरादून, जिसका एक प्रोग्राम है स्पेशलाइज्ड BA LLB इन एनर्जी सेक्टर. एनर्जी सेक्टर, तो एनर्जी सेक्टर देखो बहुत बड़ा एनर्जी सेक्टर है हमारा. रिलायंस की बात करें तो रिलायंस एनर्जी सेक्टर में है, कैसे रैपिडली ग्रो कर रहा है आपको पता है. ऐसे और बहुत सारी कंपनीज हैं, ONGC है, राइट. बहुत सारी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिनको लॉयर्स हायर करने होते हैं अपने लिए, राइट. पेटेंट लॉयर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को समझने वाले लॉयर्स, ठीक है. तो उनको वो हायर करने होते हैं. तो ये वाला कोर्स जो है, दिस इज वेरी गुड फॉर दोज सेक्टर्स इफ यू वांट टू गेट इनटू दैट सेक्टर. बट अदरवाइज आपको जनरल लॉ करना है तो फिर नहीं, फिर दिस वुड नॉट बी अ सूटेबल ऑप्शन. देन रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर सूटेबल ऑप्शंस. ओके, बाकी आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द एग्जाम्स दैट आर कंडक्टेड, राइट. ये आपके सामने है स्क्रीन पे. यस, टेल मी. So जैसे you told us about the IPM and DU JAT exam, तो इनको से अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है एंड डेट्स वगैरह कब है? हाँ, मैंने आपको डेट्स पीछे शेयर करी थी, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ. देखो, ये इनके लास्ट डेट्स होते हैं जनरली, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये दीज आर द लास्ट डेट्स टू अप्लाई जनरली, ठीक है ना. तो इनके जो डेट शुरू हो जाते हैं वो दिसंबर जनवरी में शुरू हो जाते हैं. DU JAT थोड़ा लेट आता है. DU JAT जैसे इस साल अभी निकला है, जून में निकला था, ऐसे हर साल वो अराउंड मई ही निकलता है. इस साल थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अदरवाइज अप्रैल मई के आसपास DU JAT निकलता है. लेकिन IPM की मैं बात करूं तो IPM का एग्जाम जो शुरू हो जाता है, फॉर्म भरना, वो जनवरी में हो जाता है. एंड द लास्ट डेट्स जनरली टू अप्लाई आर इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल, ठीक है. तो ये डेट्स होती हैं. तो यू शुड बी वेरी वेल अवेयर इन द बिगिनिंग ओनली कि ये फॉर्म आने वाला है और मेरे को भरना है. बाकी यू कीप इन टच विद मी. मैं जो भी, अगर मेरे साथ बच्चे हैं तो मैं उनकी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाता हूँ. मेरे साथ आप अपना नंबर शेयर कर सकते हो, मेरे नाम सेव कर लोगे तो मैं एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर जो भी अपडेट आता है किसी एग्जाम के बारे में कि ये एग्जाम निकला है या कुछ है, आई कीप शेयरिंग इट विद यू, राइट. इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप मेरे स्टूडेंट हो या नहीं हो, आई कीप शेयरिंग इट विद यू, राइट. थैंक यू सर. या एनीबडी एल्स, एनी अदर क्वेरीज? Sir, may you brief out for judiciary? Judiciary, okay. It's like, see, जुडिशरी के लिए इट्स नॉट मैंडेटरी टू हैव अ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन. जुडिशरी तो आपका एनीवेज आपका स्टार्ट होना है आफ्टर यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन. ओके, आपने BLLB कंप्लीट कर लिया, उसके बाद यू विल प्लान फॉर जुडिशरी एग्जाम्स. अब जुडिशरी के नेशनल लेवल पे भी एग्जाम्स होते हैं, पंजाब लेवल पे PCS जुडिशरी एग्जाम होता है, ठीक है ना. तो जुडिशरी के लिए एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक कॉलेज में ही जाओ. इवन इफ यू परस्यू लॉ फ्रॉम GNDU, दैट्स ऑल्सो सफिशिएंट, ठीक है ना. तो जुडिशरी का एग्जाम, क्योंकि उसका सारा सिलेबस जो है दैट इज फ्रॉम योर एक्चुअल लॉ का जो पोर्शन आपने पढ़ा है थ्रू आउट 5 years, उसमें से है. यू गेट क्रिमिनल लॉ, यू गेट टॉर्ट्स, यू गेट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे टॉपिक्स जो आप पढ़ने वाले हो अपने थ्रू आउट द 5 years का करियर. कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर ही सारा एग्जाम PCS जुडिशरी का होता है. तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है यू गेट इनटू अ गुड कॉलेज, मतलब गुड एज इन जो रैंक्ड कॉलेज है उसमें जाओ, कहीं भी जा सकते हो. बट फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि जो एजुकेशन का लेवल आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में मिलता है और जो एजुकेशन का लेवल आपको एक इंस्टीट्यूशन जहाँ पे ज्यादा रिकग्निशन नहीं है या जहाँ पे लोग कुछ करियर एस्पिरेशन से नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे आपको उस तरह का लेवल माहौल नहीं मिलेगा, ठीक है ना. PCS इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव थिंग. एक माहौल लेने के लिए भी ना आपको इंस्टीट्यूशन अच्छा चाहिए. अब आप वहाँ पे पढ़ रहे हो सर के पास, आपको अभी खैर आप मिल नहीं पा रहे बच्चों से, लेकिन एक कंपटीशन क्रिएट होता है. टेस्ट लेते हैं सर, आसपास आपको देखते हो बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक कंपटीशन क्रिएट होता है. वो कंपटीशन आपको एक लोअर लेवल इंस्टीट्यूशन में नहीं क्रिएट होगा, वो अच्छे इंस्टीट्यूशन में ही क्रिएट होगा, ठीक है ना. तो इसके लिए आप टारगेट कर सकते हो अच्छा इंस्टीट्यूशन. बट PCS जुडिशरी के लिए ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये कॉलेज वाला ही जाएगा या वो कॉलेज वाला ही जाएगा. इट्स अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन,
ठीक है, पीसीएस पंजाब लेवल का, लेकिन अदरवाइज नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो जुडिशरी का होता है, बट उसके लिए जरूरी है कि आप एलएलबी कर चुके हो, बीएलएलबी कर चुके हो, राइट? I hope I have answered your query. Yes, Sir, sir. I would like. हाँ जी दीपांजलि बोलो बच्चे। Yes, this is Dipanjali's mother. Hello, sir. Yes. I am a lawyer. Since I am from the law background, I just want to add on one thing for the knowledge of the students. Definitely. After +2, they can apply for national law universities. Thereafter, they can apply for judiciary, and that gets a very good background for having the law knowledge from NLUs. राइट बच्चे जिन्होंने पूछा था, आई होप आपकी क्वेरी और क्लियर हुई थोड़ी। Sir, there is my query with regard to Dipanjali is also there. Right ma'am, tell me ma'am. Actually she's taken commerce with psychology, and she is not interested to pursue further in commerce. Okay. Can you specially guide something good for Dipanjali? She has a keen interest for psychology. Ma'am, we'll have probably a one-to-one conversation. Okay, thank you sir. We'll speak over it. I've put my number again, ma'am. Okay, bache, any other query? Anybody? You're not audible. Okay. Sir, I want to know about the hotel management requirements. Okay, hotel management. Look, hotel management. Sir, can you post your number in the group, sir? Yes, definitely. Your number. Definitely, ma'am. I'll share. Sir will share my number with you. Right. Okay. बच्चे आपने होटल मैनेजमेंट का पूछा था, तो होटल मैनेजमेंट के लिए ना, देखो मैंने आपको culinary आर्ट का शुरू में बताया था सिम्बायोसिस, बट होटल मैनेजमेंट इट्स अ वेरी गुड करियर ऑप्शन। पहली बात, आप होटल मैनेजमेंट नहीं रह गया है। होटल मैनेजमेंट वाले क्लब्स में जाते हैं, क्लब्स एज इन क्लब्स को मैनेज करते हैं, होटल रेस्टोरेंट तो है ही, एयरलाइन केटरिंग सर्विस में जाते हैं, गेस्ट हाउसेस, क्रूज शिप की मैनेजमेंट करते हैं, इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, होटल एंड केटरिंग, राइट? तो ये बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए होटल में खुले हुए हैं, लेकिन ये उनके लिए ही खुले हैं। देखो होटल मैनेजमेंट बहुत जगह है, ये होटल मैनेजमेंट है, ठीक है ना? गुड इंस्टीट्यूशन, तब होटल मैनेजमेंट का एक्चुअल बेनिफिट है। और उसके लिए क्या करना है, कहाँ जाना है? देयर इज एन एग्जाम कंडक्टेड बाय NCHMCT। NCHMCT क्या है? काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, राइट? इसके अंदर 21 सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, और 21 स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स। तो ऑल इन ऑल इफ यू लुक एट टोटल 8000 प्लस सीट्स हैं जो NCHMCT के थ्रू आती हैं, और ये सारे के सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट? बट ऑब्वियसली इफ यू गेट रैंक इन द टॉप थाउजेंड्स में भी, तो आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल IHM दिल्ली जा सकते हो, पूसा में, राइट? वहां जा सकते हो, राइट? तो इसमें सिलेक्शन के लिए यू नीड टू टेक एन एग्जाम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं NCHM JEE, और उसके लिए दीज आर दी सब्जेक्ट्स: न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर। अगर आप इस सेक्शन को छोड़ दो तो ये बाकी सारे सेक्शन तो वही है जो मैंने पहले भी डिस्कस किए थे आपके साथ मैनेजमेंट के लिए। तो एक एडिशनल आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा सर्विस सेक्टर। तो वी कैन टॉक अबाउट इट कि सर्विस सेक्टर क्या होता है, मैं आपको एक बार बताऊंगा जरूर, विल टॉक अबाउट इट, ठीक है? कि जैसे आपको आप होटल में काम कर रहे हो, आपको सिचुएशन देंगे कि आपके साथ ये सिचुएशन होगी होटल में, या कस्टमर कोई गलत बिहेव कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप कैसे मैनेज करोगे, दे विल गिव यू ऑप्शंस ऑन दैट, ठीक है ना? सो व्हाट वी डू विद आवर कैंडिडेट, विद आवर स्टूडेंट्स, हम लोग उनके साथ एक क्वेश्चनर ऐसा शेयर करते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस दिखाते हैं उनको कि इसको कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे हैंडल करना है, राइट? इसकी कोई एज सच प्रिपरेशन नहीं है सर्विस सेक्टर की, लेकिन हाँ बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो वही है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जिनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, राइट? 180 मिनट्स 3 आवर्स का पेपर होता है, तो एनफ टाइम है, 200 क्वेश्चंस के लिए एनफ टाइम होता है, राइट? लेकिन एक जरूरी चीज, एज लिमिट होती है, 22 ईयर्स से नीचे हो तभी आप एग्जाम दे सकते हो, अदरवाइज आप नहीं दे सकते हो, राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एलिजिबिलिटी में 12th में कोई भी स्ट्रीम हो, ठीक है, इंग्लिश होना जरूरी है, इंग्लिश तो सबके पास है ही, तो कोई भी स्ट्रीम हो, और आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए, कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन उन्होंने कोई परसेंटेज नहीं रखा है स्पेशलाइज्ड, ओके? अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैंने आपको सिम्बायोसिस बताया था, सिम्बायोसिस है, ठीक है? सिम्बायोसिस के लिए भी एग्जाम जो आपको मैंने शुरू में बताया था वही एग्जाम है, ठीक है, SAT टेस्ट,
और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ऑल्सो ऑफर्स दिस प्रोग्राम होटल मैनेजमेंट का. ओके, एंड उसके अलावा एक स्टेप प्रोग्राम होता है, ये अलग है, ठीक है, वेलकम ग्रुप ऑफ होटल्स का, ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स का, ओबेरॉय का स्टेप प्रोग्राम है. ये स्टेप प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है, पहले तो इसमें जाने के लिए इंटरव्यू होता है, लेकिन स्टेप आपको कोई डिग्री नहीं देता. स्टेप इज नॉट अ डिग्री प्रोग्राम, ठीक है. स्टेप इज अ डिप्लोमा काइंड ऑफ अ प्रोग्राम. इसमें होता क्या, आप एक्चुअली एक होटल के अंदर काम करते हो. थ्रू आउट योर 3 years आप होटल के अंदर काम करते हो, ओबेरॉय ग्रुप के किसी होटल के अंदर, जिसमें आपको अल्टीमेटली वो आपको एक डिप्लोमा देंगे लेटर ऑन. ये बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा है इसमें आपको वो थियोरी नहीं है. तो जो लोग एक्चुअली प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, जिसे काफी लोग इसको प्रेफर करते हैं, जिनके अपने होटल्स हैं या जिनके पास उनके जिसके रिलेटिव्स में या फैमिली में होटल्स हैं, वो इसको डेफिनेटली प्रेफर करते हैं देखने के लिए कि एक बड़ा ओबेरॉय ग्रुप जैसा होटल कैसे काम कर रहा है, राइट. प्लस एक ओबेरॉय ग्रुप की स्टैंडिंग कितनी अच्छी है कि आप ओबेरॉय में अगर स्टेप प्रोग्राम करके आए हो ना, आपके पास डिग्री नहीं भी है, तो बहुत सारे अच्छे टॉप लेवल होटल्स आपको डेफिनेटली हायर आराम से कर लेंगे. ताज ग्रुप हो गया, ठीक है ना, विवांता बाय ताज जो आप देखते हो, तो उसके अंदर मैंने 1-2 कैंडिडेट्स देखे हैं जो स्टेप के वहां पे गए हुए हैं. दीज आर दी प्रोग्राम विच आर अवेलेबल फॉर होटल मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स. फिर आईपी यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कंडक्ट करती है होटल मैनेजमेंट के लिए. सब्जेक्ट देखो वही है, राइट. तो मेजरली होटल मैनेजमेंट के लिए ये सारे एग्जाम होते हैं जो आपके सामने मैंने दिखाए हैं. ये पूरे एग्जाम है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो बच्चे. और इसमें क्या है देखो, कब एग्जाम लास्टेड होता है और एग्जाम होता कब है वो भी मैंने लिख दिया है, ठीक है ना. तो एग्जाम आपको देना पड़ेगा होटल मैनेजमेंट के लिए. इट्स अ वेरी गुड करियर ऑप्शन, क्योंकि होटल्स में नहीं, बहुत सारी और इंडस्ट्री में आप सेलेक्ट होते हो होटल मैनेजमेंट के थ्रू, राइट. Excuse me, sir. राइट, यस प्रथम. So these universities in abroad do have courses about entrepreneurship. So do we have the same in Indian universities? Yes. Not many, but there's an institute called Entrepreneurship Development Institute. It's in Ahmedabad. It's not very much known क्योंकि entrepreneurship का concept इंडिया में आपको पता है ना कि लोग entrepreneurship को as a course समझते नहीं है कि entrepreneurship पढ़ी जा सकती है, right? Exactly. तो entrepreneurship is not a specialized, मतलब एक specialization. काफी इंस्टीट्यूशन में बीबीए के अंदर इट्स अ स्पेशलाइजेशन, राइट. आप एक सब्जेक्ट ले सकते हो क्राइस्ट के अंदर, यू कैन टेक अ सब्जेक्ट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, राइट. फ्लेम यूनिवर्सिटी के अंदर यू कैन टेक अ स्पेशलाइजेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप, बट एज सच बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस नहीं है. ईडीआई इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो एक्सक्लूसिवली एंटरप्रेन्योरशिप ऑफर करता है. लेकिन लेट मी टेल यू, अगर आप ईडीआई से पढ़ रहे हो या ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हो, वो आपको गारंटी नहीं करता कि आपको हम लोग प्लेसमेंट दिलवाएंगे. Symbiosis have an MBA. SIBM, one of the topmost institution of Symbiosis, they have an MBA in entrepreneurship. ठीक है, entrepreneurship में MBA है उनका, very good program. लेकिन वो भी आपको प्रॉमिस नहीं करते कि हम आपको प्लेसमेंट दिलवाएंगे. सिमिलरली SP Jain इंस्टीट्यूट है मुंबई में, they have a family business program. अगर कोई बच्चा चाहता है फैमिली बिजनेस को एक्सपैंड करना है, उसके बारे में भी उनके पास प्रोग्राम है, बट इट्स एट द मास्टर्स लेवल, इट्स नॉट एट द ग्रेजुएशन लेवल. तो ग्रेजुएशन लेवल में आपको यू वुड गेट इट एज अ सब्जेक्ट ओनली, ठीक है. इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स यू विल गेट इट एज अ सब्जेक्ट. ओके, Thank you, sir. Yes, tell me. So I had a doubt. Can you brief about the VFX career line in Canada? Okay. तो बच्चे VFX के लिए there are a lot of diplomas and there are very less degree programs otherwise. अभी there's an university in Ontario, it's called Ontario Tech. Ontario Tech University has a specialized degree, bachelor's in not only VFX. VFX is not their only specialization, right? VFX, ठीक है, video management, video designing, graphic designing, game development. So they give you a combination of that, right? So ऐसे ही there are a lot of other universities which provide diplomas in VFX. For example, it is given in Humber College offers a program in VFX. Seneca College offers a diploma in VFX, right? Right. There are a lot of colleges, but there are not many degrees for VFX, especially because it's a very specialized branch. It's a part of some of the programs. जैसे मैंने आपको Ontario Tech में बताया, there's a bachelor's program in game development, video designing, video development, and VFX. So VFX is a part of that. Okay. Acha, abhi I have got a question in the chat box that there are very few options for commerce students without maths. Okay, so if I exclude maths, as I was talking about the options, maths के बिना BCom honors नहीं है,
DU में बीकॉम ऑनर्स नहीं है, BSc इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं है, इनको छोड़ दें तो BA प्रोग्राम इज अवेलेबल देयर। अगर हम DU को ही छोड़ दें थ्रू आउट, पंजाब यूनिवर्सिटी डजंट आस्क फॉर मैथमेटिक्स। पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है दैट यू शुड हैव मैथमेटिक्स इन क्लास 11th एंड 12th। सिम्बायोसिस, आई टोल्ड यू, सिम्बायोसिस का कोई ऐसा पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है दैट यू शुड हैव मैथमेटिक्स फॉर एनी ऑफ देयर प्रोग्राम्स। ओके, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का देयर इज नो एज सच रिक्वायरमेंट दैट यू शुड हैव मैथ्स होना जरूरी नहीं है। क्लैट एग्जाम के लिए अगर आपको लॉ के लिए जाना है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास मैथ्स हो। होटल मैनेजमेंट के लिए, इफ यू वांट टू गेट इनटू होटल मैनेजमेंट, NCHM JEE का एग्जाम जो भी मैंने बताया, उसके लिए कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास मैथ्स हो, राइट? तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे, राइट? Excuse me, sir. Yes, yes. So can you brief more about some courses on entrepreneurship, because there are many of us who can't do jobs and are looking for personal ownerships for certain things. So can you please suggest some colleges and some courses? See, as I had discussed it earlier, entrepreneurship is a very nascent concept when it comes to India, right? तो स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बैचलर्स प्रोग्राम आपको नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा। एंटरप्रेन्योरशिप वुड बी वन ऑफ द कोर्सेज, और वो कहाँ कहाँ ऑफर होता है? आई टोल्ड यू, फ्लेम यूनिवर्सिटी इन पुणे, राइट? दे ऑफर इट, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऑफर करते हैं वो, along with their liberal arts program. Ashoka University. Sir, I would like to know more about abroad universities, some universities outside India. Abroad universities, तो वहाँ पे बहुत यूनिवर्सिटीज हैं। See, if you are talking about अच्छा, ये मेरे पास जो CA की and actuarial की queries हैं, I'll be just handling it. Just give me 5 minutes. I'll be handling it. Okay, so हम लोग entrepreneurship की बात कर रहे थे, तो बच्चे UK has a lot of programs in entrepreneurship, right? Almost every university, Warwick, King's College London, LSE, right? City University, right? Kingston University, all these universities have entrepreneurship में bachelor's program, right? It's not called BBA, or it's not called bachelor's in entrepreneurship. It's called a BBA entrepreneurship program or BSc entrepreneurship program. Okay, तो UK में सबसे ज्यादा programs हैं। Apart from UK, उसके अलावा पूरे यूरोप में entrepreneurship के बहुत सारे programs हैं, right? If I talk about Canada, तो Canada specifically entrepreneurship पे program ऐसे as such offer नहीं कर, मतलब Canada के अंदर बहुत सारी universities, topmost universities जो हैं, Schulich business school आपने सुना होगा, York University आपने सुनी होगी, York University has a program on entrepreneurship, okay, specialization in entrepreneurship, okay, and then similarly University of Regina has a program in entrepreneurship. तो बहुत सारी universities Canada में भी हैं which have options in entrepreneurship, ठीक है ना? पर सबसे ज़्यादा option मैं आपको बता रहा हूँ, the maximum number of options that you would get would be in UK, right? और application के लिए कोई ऐसा separate criteria नहीं है, आपका percentage ही matter करता है, as I told earlier also. Excuse me, sir. Yes, ma'am. Sir, can you brief something about UPSC exams? Yes, okay. UPSC exams. अच्छा, आपने शायद लिखा भी था पहले UPSC, right? Okay. तो UPSC, Union Public Service Commission. First of all, the first requirement is that you should do a bachelor's. Any bachelor's, does not matter where do you do your bachelor's from. Any bachelor, it could be commerce, it could be humanities, it could be anything. Okay. After that, UPSC exam is conducted for a lot of posts like IAS, IPS, IFS, right? इन सब के लिए होता है UPSC, and UPSC stages में होता है. Let me tell you the stages. UPSC is conducted in stages. UPSC का सबसे पहले होता है preliminary exam. तो prelim exam is divided into two parts. Yes, actuarial I'm taking up Vani. I'm taking up actuarial and I'm also taking up CA. Okay, so prelim के अंदर it is divided into two parts. One is general studies and one is aptitude. This is a qualifying exam. अगर आप qualify कर लेते हो इसको, qualify करने का मतलब है कि even if you get 33% marks in this exam, जैसे 200 नंबर का पेपर होता है ये, तो 66 मार्क्स से ऊपर होते हैं तो आप क्वालिफाई कर गए। कुछ जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उसको कोई बेनिफिट नहीं है, you just need to qualify. और aptitude, what is aptitude? Aptitude is just what we discussed, maths, reasoning, English, these things. But general studies talks about everything. It has history, geography, biology, maybe sciences का part है, science, इसमें biology, physics, chemistry, economics,
सबके बारे में क्वेश्चंस होते हैं जनरल स्टडीज में, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, एवरीथिंग वुड बी देयर, राइट, एवरीथिंग वुड बी देयर इन दिस। तो आपको शुरू से ही ऐसे प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि आप मे बी अगर आप ह्यूमैनिटीज में जा रहे हो या जिसमें भी जा रहे हो, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ये सारे वैरायटी होने वाले हैं। तो यूजुअली क्या होता है, पीपल हु आर फ्रॉम कॉमर्स और इंजीनियरिंग और एनी अदर बैकग्राउंड, दे प्रोबेबली टेक अ ईयर टू प्रिपेयर ऑल ऑफ दीज। ये सबको प्रिपेयर करने में वो टाइम लेते हैं। और यूजुअली ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे क्योंकि इनमें से काफी सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं, तो कई बार वो इमीडिएट आफ्टर दिस एग्जाम दे देते हैं यूपीएससी का। अब ये होने के बाद, प्रीलिम होने के बाद, यू गो टू अ मेंस एग्जाम, ठीक है। तो मेंस एग्जाम में व्हाट इज द थिंग, मेंस एग्जाम में यू नीड टू चूज अ सब्जेक्ट। अब वो सब्जेक्ट कुड बी फ्रॉम योर ओन फील्ड। 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं, उसके ऊपर मल्टीपल चॉइस वाला एंड राइटिंग वाला पूरा टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो डीपली यू शुड बी अवेयर ऑफ इट डीपली। मास्टर्स लेवल तक के क्वेश्चंस उसके अंदर पूछते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है आप मास्टर्स करो, लेकिन आप पढ़ सकते हो उसके बारे में, ठीक है ना। यूपीएससी के लिए पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ता है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट दैट नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सब्जेक्ट। 23 सब्जेक्ट्स की लिस्ट होती है। 23 सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अकाउंट्स, अगर कॉमर्स वाले हैं तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, अगर साइंस वाले हैं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ऑल दी सब्जेक्ट्स आर देयर, यू नीड टू चूज योर सब्जेक्ट्स। तो ये यूपीएससी का पूरा पैटर्न है, दैट्स हाउ इट इज देयर। Excuse me, sir. Yes, ma'am. Excuse me, sir. Sir, what about Canada? Is maths compulsory for law? बच्चे लॉ आप कनाडा में आफ्टर 12th करते ही नहीं हो, ठीक है ना। 12th के बाद इमीडिएट आप लॉ नहीं करते, आप लॉ जैसी कोई अलाइड डिग्री करते हो, ठीक है ना। इट कुड बी लीगल असिस्टेंट कोर्स, या 12th के बाद आप बैचलर्स डिग्री जो करते हो एलएलबी नहीं होती है बेसिकली, ठीक है ना। वहां पे एलएलबी को हम लोग ज्यूरिस डॉक्टर बोलते हैं। यूजुअली ज्यूरिस डॉक्टर डिग्रीज आर नॉट देयर आफ्टर क्लास 12th, ठीक है। 1-2 यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, लेकिन वो एलएलबी डिग्री नहीं होती। कौन सी ऑफर करती है? यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली ऑफर करती है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू ऑफर करती है, थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। दैट्स नॉट एन एलएलबी डिग्री। और इनके लिए आपका क्वेश्चन था कि मैथ्स रिक्वायर्ड है कि नहीं, मैथ्स इनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। तो अब अगला क्वेश्चन कि एलएलबी करना कैसे कनाडा में, यू परस्यू एनी बैचलर्स इन कनाडा, उसके बाद यू नीड टू अपीयर फॉर एन एग्जाम कॉल्ड एलसैट, और एलसैट देने के बाद यू गो फॉर एलएलबी, ठीक है। या फिर जो रूट वेन्या ने लिया, जैसे आपको मैंने शुरू में बताया था, क्रिमिनोलॉजी इज रिलेटेड टू लॉ, तो उसने क्रिमिनोलॉजी वाला कोर्स लिया, इसीलिए लिया है कि शी माइट परस्यू लॉ लेटर ऑन, ठीक है ना। शायद वहां जाके बाद उसके बाद में अगर सूटेबल रहा यही करियर तो क्रिमिनोलॉजी परस्यू करेगी आगे, नहीं तो वो लॉ के अंदर जा सकती है, राइट। तो आफ्टर 12th कोई डिप्लोमा करना पड़ता है पहले, या कोई डिग्री फॉर 4 years में भी? बैचलर्स डिग्री करनी पड़ती है कोई, उसके बाद एलएलबी करते हो। देखो इंडिया में बीएलएलबी होती है ना, एलएलबी अकेली डिग्री नहीं होती बैचलर्स, आपको कोई ना कोई और बैचलर्स आपने करनी पड़ती है। तो यही कनाडा और यूएस में ऐसा है कि आपको पहले बैचलर्स डिग्री करनी पड़ती है, फिर आप एलएलबी करते हो, ओके। उसमें ऐसा नहीं कि बीएलएलबी कॉम्बिनेशन मिल गया जैसे इंडिया में मिलता है या यूके में मिलता है, वैसा कॉम्बिनेशन वहां पे नहीं होता है, राइट। तो आपको बैचलर्स डिग्री पहले करनी पड़ती है, कुड बी इन एनीथिंग, बिजनेस, अकाउंटेंसी, एनीथिंग, ओके। फिर उसके बाद आप एलएलबी जा सकते हो लेटर ऑन, ओके। Sir. Excuse me, sir. Yes, yes. Sir, I would like to add more to my previous question. Can you please suggest me some more top-ranked universities in UK and in Europe side for the entrepreneurship programs? You take my number. What's your name? Yugant. Yugant, you take my number. I'll just send you just send me a question, and I'll figure out what universities offer this program, and I'll share it with you. Okay, sir. And about before I answer anybody else's query, बहुत सारी query writing में है, I don't want to miss them all. Actuarial sciences, CA, CS, marketing, and event management. तो इनके बारे में query है, I'll briefly take it up. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। Actuarial sciences देखो, Actuarial sciences ऐसा कोर्स है, Actuarial sciences is very good, but you should be very, very, very good in mathematics. Mathematics में आप बहुत ही अच्छे होने चाहिए, ठीक है। आप मान के चलो, ये मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। एक्चुअरियल बनने के लिए सबसे पहला स्टेप है, यू नीड टू टेक एग्जाम कॉल्ड ACET, ठीक है। अब ACET एग्जाम में मैथ्स भरा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैथ्स के अलावा लॉजिकल रीजनिंग भी होता है, इंग्लिश भी होता है, बट मैथ्स बहुत ज्यादा होता है, राइट।
Once you clear this exam, 5 sections होते हैं exam में. Once you clear this exam, you become the student member of IAI. It's a body for actuaries. Student body. IAI जैसे CAs के लिए ICAI body होती है, ऐसे IAI body है, right? तो IAI body के आप member बन जाते हो. उसके बाद आपको through out 4 पेपर्स, जैसे CA में आप पेपर्स क्लियर करते हो, इंटरमीडिएट लेवल जाते हो, फाइनल पेपर्स क्लियर करते हो, ऐसे एक्चुअरियल के लेवल्स होते हैं. यू क्लियर द एग्जाम्स. अगर आप पहली 15 टोटल पेपर्स 15 आपको क्लियर करने होते हैं. टोटल 15 पेपर्स इन 4 लेवल्स आपको क्लियर करने होते हैं. ठीक है ना. 15 पेपर क्लियर करने वाले इंडिया में बहुत कम लोग हैं, तो मैं आपको बताऊं एक्चुअरियल. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है. इफ यू आर डेडिकेटेड इनफ, 15 पेपर्स क्लियर करते हो, बहुत एडवांटेज है इंडिया में, अब्रॉड, दोनों जगह पे. क्योंकि एक्चुअरीज जो है ना, वो इंडिया में करो या कहीं भी करो, वो एक्सेप्ट हर जगह होते हैं. ठीक है ना. जैसे आपको एक्चुअरीज को, इंडिया के एक्चुअरी को आपको यूके में जाना है, तो वहां जाके सिर्फ एक पेपर आपको देना है, उनका टाई अप है, आप वहां पे एक्चुअरी बन सकते हो. आप कनाडा जाना चाहते हो, कनाडा जाके एक पेपर देना है, आप वहां जाके एक्चुअरी बन सकते हो, राइट. अब एक्चुअरीज काम कहाँ पे करते हैं? दे वर्क इन द इंश्योरेंस सेक्टर. इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं. ठीक है. तो इंश्योरेंस में इनका काम क्या है? रिस्क असेसमेंट करना. नॉट ओनली इंश्योरेंस सेक्टर, पेंशन देने वाली कंपनीज होती हैं बहुत सारी, तो दे वर्क विद इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन कंपनीज, जो रिस्क असेसमेंट करती हैं, राइट. दैट्स व्हाट एक्चुअरीज डू. नाउ सेकंड CA. अब CA आई एम श्योर आपको पता होगा आपकी CPT का एग्जाम अब पहले होता था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अब नहीं होता है. बट इसका ये मतलब नहीं कि CPT के लिए आप जो पढ़ते थे वो पढ़ना नहीं पड़ेगा. जो भी आप पढ़ते थे वो आपके बिगिनिंग में प्रीलिम एग्जाम जो आप देते हो, फर्स्ट एग्जाम देते हो CA का, उसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट आपको देने पड़ते हैं. कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं? बिजनेस स्टडीज होता है, मर्केंटाइल लॉ होता है, बिजनेस स्टडीज, मर्केंटाइल लॉ, अकाउंट्स एंड मैथ्स. लेकिन लेट मी अश्योर यू, मैथ्स उसके बाद आपको तंग नहीं करेगा. ठीक है ना. शुरुआत में मैथ्स होता है, उसके बाद नहीं होता. CA इज अ सेल्फ डिसिप्लिन कोर्स काइंड ऑफ. मतलब CA के लिए आप बात करो कि आपको कहीं जाना पड़ेगा किसी कॉलेज में या कहीं, वो तो ऑब्वियसली नहीं जाना पड़ेगा, राइट. तो CA आप किसी डिग्री के साथ साथ परस्यू कर सकते हो, बैचलर्स. और अगर बैचलर्स के बाद परस्यू करते हो तो आपको इनिशियल लेवल जो CA का होता है वो आपको नहीं देना पड़ता, आप इमीडिएटली सेकंड लेवल में जाते हो, राइट. इंटरमीडिएट में सीधा चले जाते हो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद CA करते हो. अगर साथ में ही करते हो तो आपको फिर इंटरमीडिएट से पहले आपको प्रीलिम भी करना पड़ता है. और इसके अंदर जो CA है, इट टेक्स मोर अबाउट, अगर आप इसकी आर्टिकलशिप में ला लो, आर्टिकलशिप आई होप आप समझते हो आर्टिकलशिप क्या होता है. आर्टिकलशिप इज एन इंटर्नशिप. इट्स अ पेड इंटर्नशिप जो आपको थ्रू आउट CA के ड्यूरेशन में आपको करनी होती है, 3 years की, जो आप किसी ना किसी रिकॉग्नाइज CA के साथ करते हो, राइट. इफ यू इंक्लूड आर्टिकलशिप इन दिस टेक्स अबाउट 5 years. ओके, ऑलमोस्ट CA में 5 years लग जाते हैं. बट मेरी रिकमेंडेशन, पर्सनल रिकमेंडेशन, माय ब्रदर इज अ CA. he's worked really hard to become a CA, right. But if at all you have a background in CA, I mean your parents, your relatives, or somebody who can guide you, who can assist you in CA, तो फिर बहुत फायदा है इसमें. Otherwise it would be very challenging for you to survive in a city like ours, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छे CA ऑलरेडी हैं. तो लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं CAs के लिए. अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज आर देयर. ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इन टॉप मोस्ट कंसल्टेशन फर्म्स. टॉप मोस्ट कंसल्टेंसी फर्म्स जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, KPMG, डेलॉयट, उन सब में बहुत अच्छी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं. ठीक है ना. बट CA इज अ वेरी वेरी रिगरस कोर्स. मतलब CA में ऐसा बोलूंगा कि वो महाभारत के टाइम पे जो तपस्या करते थे भगवान की, वो आज के जमाने में अगर तपस्या कर रहे हो तो CA और एक्चुअरियल ऐसी चीजें हैं जिसमें आप तपस्या कर रहे हो, वैसी तपस्या, राइट. तो CA में बहुत आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, राइट. CS में लेट मी टेल यू फ्रैंकली, CS, how many CS people have you heard about across around? बहुत ज्यादा नहीं होते हैं. CS इंडिविजुअली अपने आप में, ऑल्दो ये रिक्वायरमेंट है बहुत सारी कंपनीज की जिनका पेड अप कैपिटल 5 crore या उससे ऊपर होता है, उनको CS रखने पड़ते हैं. बट CS की डिमांड बहुत ही धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि ये काम मैनेज हो जाता है बाकी लोगों से, राइट. तो CS I would say अगर somebody is planning to pursue law along with CS, that would be a very good combination. या कुछ CS के साथ और एडिशनल चीज कर रहे हो, that would be a very good combination. All alone CS करना would not be very fruitful in the future क्योंकि डिमांड कम होती जा रही है धीरे धीरे, राइट. नेक्स्ट ऑप्शन मार्केटिंग. Excuse me, sir. Yes. Sir, sorry to interrupt you. I have a doubt that if we do our graduation in India and then go abroad for our post-graduation, is Right. that a good option? It completely depends. You know, who was it? Sir, sorry.
Sure, it completely depends. A lot of people do that. It's like, see, it depends where do you want to go. If you're planning to go to Canada and you feel that the bachelor's degree is too costly or you will not be able to manage the funds for that, तो फिर मास्टर्स 2 साल की है तो मास्टर्स के लिए जा सकते हो. बट अदरवाइज माय रिकमेंडेशन वुड बी कि अगर कनाडा आपने प्लान किया है, बैचलर्स जाते हो तो आप 3 years या 4 years आप वहाँ पे स्पेंड करते हो. यू नीड टू स्पेंड जस्ट 1 year वर्किंग समवेयर, और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो आपको मिलता है, जो आपको जितने साल की डिग्री होती है उतना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, PGWP जिसको बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. जितने साल की डिग्री है उतना ऑलमोस्ट आपको वर्क परमिट मिलता है. 2 साल की डिग्री है 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा. और अगर आपको 4 साल की डिग्री कर रहे हो, आपको वर्क परमिट ऑलमोस्ट 3 साल से 4 साल का मिलता है. वो 3-4 years के अंदर यू कैन इजीली गेट योर PR. देयर आर बेटर चांसेस एंड आप एडजस्ट हो जाते हो 4 years के अंदर. बाकी इट वेरीज फॉर एवरी कंट्री. ठीक है ना, हर कंट्री. Sir, I read it somewhere like the colleges ask for a 2 to 3 years work experience for like if you have to go. Sorry, sir. That's for MBA. Yeah, sir, that is a post-graduation course. So, like, it is compulsory to have a work experience of 2 years before pursuing MBA in abroad. Again, depends which country are you looking at. If you're looking at USA, so USA may definitely all the top-notch institutions would ask for a 2 years work experience minimum. Canada में you talk about top-notch institutions like UBC की बात कर लो आप, या U Toronto की बात कर लो. उसमें ऐसा है कि अप्लाई आप कर सकते हो, बट द चांसेस आर बेटर if you have experience of about 2 years. Okay, University of Waterloo Canada में they have a 1 year MBA program. उसके लिए कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसकी रिक्वायरमेंट है कि डिग्री या 4 year डिग्री. यूके में जा रहे हो, यूके में प्रोग्राम होता है MIM, मास्टर इन मैनेजमेंट. उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. यू शुड जस्ट हैव योर ग्रेजुएशन, उसके बाद आप डायरेक्टली MIM के लिए जा सकते हो. Right. Okay, thank you so much, sir. Okay, so abhi marketing and event management, two options left. Yes. Sir, I have a doubt. Sir, if suppose I'm thinking for pursuing with corporate law, business law in abroad, so should I go and study there for the undergraduate courses, or should I do an undergraduate here? And which integrated courses should I go for, or just the LLB? If you want to pursue law outside India, the best time would be corporate law. Corporate law. Best time would be right now after 12th, not after graduation, because the visa success rate for law after graduation going to US or Canada, it's very less, right? Because let me just tell you the facts. क्या होता है जब आप वीजा इंटरव्यू अप्लाई करते हो ना, तो जो वीजा आपका अप्रूव कर रहा है ना, उसको वो अपने स्टेटमेंट में लिखता है कि आई एम कन्विंस्ड और आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट दिस पर्सन विल रिटर्न बैक टू हिज कंट्री. अब लॉ ऐसा एक ऑप्शन है जो अगर आप यूएस में या कनाडा में या कहीं भी पढ़ने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप वहां का लॉ पढ़ रहे हो, आप वहां पे रहना चाहते हो, आप वहां पे परस्यू करना चाहते हो अपना करियर. ओके, सो दैट डजंट गिव देम अ वेरी गुड रीजन कि आप वापस आओगे, तो वीजा सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं. अगर कॉर्पोरेट लॉ में जाना है, अ वेरी गुड रूट वुड बी get into a management program, not necessarily BBA, BMS, BCom, any program which is related to accounts or commerce. Okay, get into that. After you complete that program, maybe work for a year or 2 and then appear for, agar nahi bhi kaam karna, directly appear ho sakte ho for LSAT examination there. Once you've completed LSAT there, uske baad you can go for your LLB. That would be a very good route. ठीक है, बट अगर कॉर्पोरेट लॉ आपको इंडिया में करना है, देन द बेस्ट टाइम इज नाउ कि आप क्लैट एग्जाम प्रिपेयर करो या स्लैट एग्जाम प्रिपेयर करो. ठीक है ना, फिर आप कॉर्पोरेट लॉ यहाँ परस्यू कर रहे हो, 2-3 साल 4 साल काम करने के बाद शायद आपकी कंपनी आपको भेज दे, बट दैट्स नॉट 100% श्योर कि आपको भेजेंगे. राइट, इट कंप्लीटली डिपेंड्स. एक्सक्यूज मी सर. थैंक यू सर. यस मैम. सर, ये जो कोर्स है, जो बैचलर डिग्री करेंगे, उसके बाद लॉ के लिए कितने इयर्स का वो LLB का कोर्स होगा? वो कितने इयर्स का होगा कोर्स? देखो, बैचलर डिग्री आपकी 3 years की हो सकती है, 4 years की भी हो सकती है. प्राइमरली कनाडा में 4 years की बैचलर डिग्री होती है, कुछ 3 years की होती है, लेकिन मेजरली 4 years की होती है, और उसके बाद LLB 3 years. सो इन टोटल टू बिकम अ लॉयर यू नीड अबाउट 7 years कनाडा में. इंडिया में जो 5 years होता है वहाँ राइट सर. राइट.
तो अब हमारा रह गया था मार्केटिंग. somebody had asked about marketing. सी बच्चे, मार्केटिंग के लिए कोई आपको स्पेशलाइज अलग कोर्स नहीं करना है. जो मैं आपको पहले ऑप्शन शुरू में बता के आया हूँ बीबीए के, DU, JAT, IPM, क्राइस्ट, सिम्बायोसिस, आई एम रीविजिटिंग दोस. उनमें सब में मार्केटिंग इज एन ऑप्शन. उसके बाद जब MBA करते हो तो MBA में यू कैन टेक मार्केटिंग एज अ स्पेशलाइजेशन. तो मार्केटिंग में घुसने के लिए द फर्स्ट रूट इज गेटिंग इनटू BBA ओनली. ओके, वंश इट कंप्लीटली डिपेंड्स फ्रॉम अ. अब मैं आपको बताऊं तो लवली का भी एक मेरा बच्चा है होटल मैनेजमेंट का, जिसको 20 लाख का पैकेज मिला है. ठीक है ना, कार्ल्टन होटल में प्लेस हुआ वो, राइट. ठीक है ना गाइज, आई बिलीव यू हैव अ टेस्ट एट 2:30 ऑल्सो. तो मेरे को लगता है कि आपकी जो इसके अलावा क्वेरीज रह गई हैं जो मैं इनको नहीं हैंडल कर पाया, इवेंट मैनेजमेंट वाली क्वेरी थी, मैं क्विकली रैप अप करता हूँ. इवेंट मैनेजमेंट के इंडिया में बैचलर लेवल पे कोई कोर्सेज नहीं है, बट अगर किसी ने मेरे से कनाडा का पूछा था, इवेंट मैनेजमेंट के बहुत सारे डिप्लोमाज हैं, राइट. कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है. पिया ने पूछा था, पिया ग्रोवर. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है. इवेंट मैनेजमेंट के डिप्लोमाज डायरेक्टली आपके 12th के परसेंटेज पे डिपेंड करते हैं. वर्क ऑन योर 12th परसेंटेज. हाँ, एप्लीकेशन इन टाइम होना चाहिए. ओके, एप्लीकेशन टाइम पे होना चाहिए. उसके लिए यू कैन गेट इन टच विद मी. एप्लीकेशन के लिए आप मेरे को मिल सकते हो. वी कैन हेल्प यू आउट विद एप्लीकेशन. और IELTS जो करना है, IELTS आपको टाइमली करना पड़ेगा. ठीक है, दीज आर दी ओनली रिक्वायरमेंट्स इवेंट मैनेजमेंट के लिए कनाडा में. ठीक है, यस युगांत, यू कैन मैसेज मी पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बात करते हैं इसके बाद. ठीक है, तो आप लोगों का टेस्ट है. आपकी जो क्वेरीज रह गई हैं, यू हैव माई नंबर, आई एम शेयरिंग इट अगेन. तो आप मेरे से बात कर सकते हो. वैसे आजकल हमारे ऑफिस नहीं खुलता है, लेकिन यू कैन टेक एन अपॉइंटमेंट एंड कम टू मीट मी ऑल्सो. ओके, अपॉइंटमेंट बेसिस पे आई ओपन द ऑफिस, यू कैन कम एंड मीट मी. एंड आई एम कंडक्टिंग लाइव क्लासेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CLAT, BBA, होटल मैनेजमेंट, BBA के अंदर IPM, जितने भी प्रोग्राम्स IPM, DU, JAT जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, वी आर कंडक्टिंग लाइव क्लासेस फॉर ऑल ऑफ दोस, जो शाम को मेरी 7:15 PM से शुरू होती हैं and then go on to till about 8:45, 9 PM. Okay, if anybody would be interested, you can get in touch with me. You can start, because this is the best time to start. Whatever you plan to pursue, SAT plan करते हो, BBA plan करते हो, CLAT plan करते हो, this is the best time when you can start. इससे ज्यादा डिले करोगे, अगर सपोज कल को स्कूल का प्रेशर ज्यादा हो गया, खुल गया, तो और प्रेशर ज्यादा पड़ेगा दिमाग पे. दिस इज द बेस्ट टाइम. 11th वालों के लिए तो और बेस्ट टाइम है कि 11th में आप सारा सिलेबस खत्म कर लो, 12th में फोकस ऑन बोथ. बोर्ड्स पे फोकस करो, इधर सिर्फ प्रैक्टिस करो. ओके, सो स्टिल इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन माय नंबर. ओके, आपके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है. दिस इज, आई एम अगेन राइटिंग इट, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर. ओके. Okay, so I believe I have answered most of the queries, but still अगर रह गई होंगी तो I'll apologize. You can send your messages to me. I'll handle those queries. You can call me up also. The rest I would hand over the session to Varun sir now. Varun sir, if you could share something with the students. I'll stop the sharing. Good afternoon, sir. It's Dipali here. Yeah. And everyone, thank you, Anshul sir, for your valuable time and sharing with us such valuable knowledge. This session was very important. Actually, class 11th we haven't met, and people are very lenient and they are very happy about their results. है ना? 10th तक they feel like 98%, 96 आ गया, so it's very easy to get in +1 and +2 also. They don't have any goals. So this session was actually very important for them to know the reasons to study hard in these 2 years. Right. Especially class 11th, जो अब new batch आया है, we haven't met personally. They are very, very lenient. Now I hope after such valuable things they have known, अब इनको पता लग गया है कि पढ़ाई and competitive, both academic and the competitive, they both are equally important right now. So now I hope they will get serious. इनको मैं साथ साथ कहती, आपने जो चीज कही है, इनको भी मैं यही चीज कहती हूँ, like they have now good opportunity to sit back and study. It's very important. These 2 years, now it's 1.5 year left. Half of the year is over now. So now they should plan a career-oriented plan for themselves. Nobody is going to give them such guidance as you have given in such detail. Fir bhi, if they have any query, please
you contact sir anytime, and we will conduct this workshop again. ठीक है, इससे आपकी motivation level भी increase हो जाएगा. So if you want, we'll be doing it frequently between your sessions. ठीक है? And I hope, thank you Anshul sir for your valuable time, and whatever query they have, kindly do it, और इनको motivate भी करते रहो that they should work hard and get good results. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you students for getting their time shared here. Thank you sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you.